مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ ماہ رمضان ماہ رمضان خوشیوں کا پیغام ماہ رمضان بخشش کا سامان ماہ رمضان۔ آپ کا نام اور کہاں سے آئے آپ؟ میرا نام محمد اسامہ طاری ہے، میں عبدالحکیم خانوال سے آیا ہوں۔ رحیم یار خان سے۔ سید عبدالخالق کراچی شہر کا ہی ہوں۔ ناظم حسین طاری پورے والا وہاڑی سے آیا ہوں۔ شہباز خان طاری ملتان شریف سے 30 دن کے اعتکاف کے لیے آیا ہوں۔ میرا نام غلام عباس ہے، ہم بلوچستان سے آئے ہیں۔ محمود نام ہے، کراچی کا ہی ہوں۔ محمد کاشف اطاری لاہور سے۔ سیکھنے کو ملتا ہے مدنی مذاکروں میں بھی، جیسے اس بار امیر سنت تھال کے حوالے سے فرمایا تھا، تھال بھی صاف ہو رہے ہیں، مسواک کی ترغیب دلائی تھی تو الحمدللہ مسواک بھی ہے۔ تو مسواک پہلے تو کرتا تھے لیکن اب زیادہ برش کی جگہ مسواک پہ ہی فوکس ہے کہ مسواک ہی کی جائے۔ آج امیر سنت کا دیدار ہوا ہے تو فرسٹ ٹائم ان کے دیدار پہلے بھی ہوا تھا لیکن اس مرتبہ جو دیدار ہوا نا وہ آنکھوں سے خود بخود نہ آنسو جاری ہو گئے کہ مرشد کو آنکھیں نہ ٹک ٹکی باندھ کے دیکھ رہے تھے نا، ایسا مزہ ہے نا بس۔ میں گھر ہی نہ وجا، میں تھی رہے وجا، میرے 2 بیٹے نے میں اللہ ذریعہ سب کچھ یہ پیا، میرے کو یہ لطف آ گیا، میں میرے اتنا کہ چاہنے والے کافی ہیں، میں دل ہی نہیں کرنا کہیں نہیں بجانا، اتنا ہی رہنا ہے۔ تبدیلیاں محسوس کی ہیں، گناہوں بھری زندگیوں سے جو ہے چھٹکارا کیا ہے، داڑھی وغیرہ رکھی ہے اور نمازوں کی پابندی ہو گئی ہے، بات کرنے کی تمیز نہیں تھی ہمیں، وہ سکھایا الحمدللہ مدنی ماحول نے۔ چھوٹوں کے ساتھ شفقت سے پیش آنا، بڑوں کی عزت کرنا، ماں باپ کی فرمانبرداری کرنا، بہت ساری باتیں جن کے حوالے سے معلومات نہیں تھی، تو اس مدنی ماحول میں آنے کے بعد پتہ چلا کہ ہم کس طرح کا ماحول جو ہے دنیا میں گزار رہے تھے۔ یہاں آنے کے بعد معلوم ہوا کہ جو ہم نے وقت گزارا وہ ضائع کیا ہم نے سب۔ 2013 میں آیا تھا، اس وقت میری داڑھی نہیں تھی، تو الحمدللہ آج پھر آیا ہوں تو الحمدللہ داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے۔ بابا جی سے مل کے بہت خوشی ہوئی ہے، جتنا مزہ دعوت اسلامی کے ماحول میں ملا ہے نا کبھی بھی کہیں سے بھی نہیں ملا۔ 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں، مدنی قافلے کرتے ہیں، لوگوں کو ترغیب دیتے ہیں۔ اللہ پاک بابا جی کو سلامت رکھے، جو دعوت اسلامی کے ماحول میں وہ بستہ ہوئے نا، زندگی ان کی ہے۔ ادھر آ کر الحمدللہ ہر قسم کے گناہوں سے بچ گئے ہیں، اور نماز کی پابندی اور سنت کے مطابق اٹھنا چلنا بیٹھنا سونا کھانا الحمدللہ بہت تبدیلی آئی ہے۔ امیر نے جیسے مسواک کی ترغیب دلائی تو میں نے اسی ٹائم مسواک لے لیا۔ میں نے اپنے گروپ والوں کو بھی کہا کہ آپ مسواک لیں، آپ کے دانت بھی صاف رہیں گے اور سنت بھی ادا ہو جائے گی۔ کیا پیغام دینا چاہیں گے لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ فیضان مدینہ میں آئیں، جیسے آپ انٹری کریں گے آپ کی زندگی بدل سکتی ہے، آپ پرسکون ہو جائیں گے۔ ہمارے جو گاؤں کا ماحول ہے، جب ہم گھر میں رہتے ہیں وہاں پر ہمیں سکون نہیں ملتا، لوگوں کے جھگڑے، اس کی غیبت، اس کی چغلی، اس کے جھوٹ۔ ادھر جو آتے ہیں ادھر اللہ کے ولیوں کی منع کی باتیں، یہ رحمتیں، یہ نیکیاں، یہ بہت ساری ہمیں ملتی ہیں رحمتیں۔ پہلے میرے سر پر امامہ نہیں ہوتا تھا، جیسے میں ادھر آیا ہوں میرے سر پر امامہ آ گیا ہے۔ ہم ادھر آتے ہیں ماشاءاللہ، روزے بھی ہوتے ہیں ہمارے، نماز با جماعت پڑھتے ہیں، اور یہ ماحول گھر پہ نہیں ملتا ہے، اور یہاں کافی چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں، وضو کا طریقہ، غسل کا طریقہ، نماز پڑھنے کا طریقہ۔ ہمیں شریعت کا نہیں پتہ تھا، نماز کے پہلے نماز کیا ہوتا ہے، سب سے بڑی بات قرآن کا نہیں پتہ تھا کہ قرآن تلفظ کی ادائیگی سے پڑھا جاتا ہے ویسے۔ تو سب سے مین چیز ہے کہ جو ہے تربیت، میرے سن کی سب سے بڑی بات ہے وہ تربیت کرتے ہیں، اور اگر ہم اس پہ عمل کر لیں میرا خیال ہے تو دنیا بھی اچھی آخرت بھی اچھی ہے۔ ہمیں قدر کرنی چاہیے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی، کہ جو آج کے ولی بھی ہیں، مجدد بھی ہیں، جنہوں نے اپنے دور کو بدل دیا ہے۔ یہ نعت خوان، یہ وہ امامہ، یہ چیزیں، یہ امیر اہل سنت کی برکات ہیں، اور ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے۔ میری بھی کوشش ہے کہ میں انشاءاللہ تعالیٰ ماحول سے وابستگی لے، میں جس نیت سے میں رکا ہوں نا موتخین کے ساتھ، میرا جو مقصد یہی ہے کہ میں بھی امامشی پہنوں، میں اپنے کو چینج لانا چاہتا ہوں کہ امیر اہل سنت کی نظر کرم ہو جائے تو کیا ہی بات ہے۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله
وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتکاف. جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. دل ہی میں نیت کر لیجئے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. اب معتکف ہو گئے, دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی دوہرا لینا زیادہ اچھا ہے. چاہے اپنی مادری زبان ہی میں کہہ لیں میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. اب جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا. جب آپ مسجد سے باہر نکلیں گے تو یہ نفل اعتکاف ختم ہو جائے گا. یہ بھی یاد رہے کہ مسجد میں اعتکاف کی نیت نہ ہو کھا پی سو وغیرہ نہیں سکتے, نہ نیاز کھا سکتے ہیں, نہ سحری و افطاری کر سکتے ہیں. اب افطاری آ گئی اور آپ نے اعتکاف کی نیت نہیں کی تھی تو کھا پی نہیں سکتے, افطار نہیں کر سکتے. اب اس کے لیے اعتکاف کی نیت کر کے اگر کھائی تو ٹھیک ہے, جائز ہو جائے گا, لیکن ثواب کے لیے نیت کریں گے تو ثواب بھی ملے گا. تو اعتکاف کی نیت ثواب کے لیے کریں اور کچھ ذکر و درود کی ترکیب کر لیں, چاہیں تو 12 بار درود شریف پڑھ لیں. اب بھلے آپ افطار وغیرہ کریں, اللہ پاک برکت دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ضیاء درود و سلام پیج نمبر 3. آج کی 1443 ہجری کے رمضان مبارک کی 6ٹھی شب کی نسبت سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 6. جبرائیل نے مجھ سے عرض کی کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تمہارا امتی تم پر ایک سلام بھیجے, میں اس پر 10 سلام بھیجوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے, معتکفین جمع ہے اور براہ راست ٹیلی کاسٹ بھی ہو رہا ہے مدنی مذاکرہ. اب سوالات کیجیے, سوال کا جواب وہ بھی بس ثواب یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں, بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے میں شائع کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں, شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. بابا جان شعر سے کیا فرماتے ہیں کہ 12-14 گلاس پانی پئیں تو طلبہ کرام کس طرح اس کو مینٹین رکھیں کہ پانی بھی پی لیں اور ان کے مطالعہ وغیرہ میں بھی مسائل نہ ہوں وضو کے. نہ کوئی جدول بنا لیں کہ اتنی دیر کے بعد پیاس ہو یا نہ ہو پانی پینا ہے. رات میں 12-14 گلاس پانی پینا خیر مشکل تھوڑا ہے لیکن ناممکن نہیں ہے. عموماً جو میری معلومات ہے 1.25 گھنٹے میں پانی جو نا اپنا یہ پورشن تبدیل کر لیتا ہے. اس کو یوں سمجھو کہ ہضم ہو جاتا ہے, شاید اتر جاتا ہے. پانی پیو تو بعد میں خالی ہو جاتا ہے حساب کتاب, تو پھر دوسرا پانی جا سکتا ہے. تو اس میں یہ کہ تھوڑا آزمائش یہ ہوگی کہ پیشاب لگے گا. اب پیشاب لگے گا تو اس میں فائدہ ہوگا. پانی پینے سے جو پیشاب لگا نا تو یہ آپ کی فاسد مادے انشاءاللہ لے جائے گا. جو صحت جن کی اچھی ہوتی ہے ضروری نہیں کہ بہت جلدی پیشاب لگے, لیکن یہ کہ ان کی یعنی صفائی ہوتی رہے گی نالیوں کی, پیٹ کے اندر جو ہیں ان کی, گردے کی نالیوں کی, مثانے کی, یہ بیماریوں کو مطلب دور کرتا رہے گا. پھر پورے جسم کو اس کا فائدہ ہوتا ہے نا. اب پودے کو پانی نہیں دو تو ظاہر مرجھا جائے گا, پانی پودے کو ملے گا تو تر و تازہ رہے گا. بدن بھی یہ پودا ہے, درخت ہے, پانی نہیں دیں گے تو اس کا حال کیا ہوگا. ظاہری طور پر چاہے وہ جلدی مرجھا نہ بھی جائے بدن, اندرونی طور پر جو حساب کتاب ہے نا وہ سمجھو اس میں مرجھانا
شروع ہو جاتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. میرا آپ سے یہ سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے گھر سے روٹ کر یا ناراض ہو کر چلا جائے تو اس کو بلانے کے لیے کوئی مجرب عمل، کوئی وظیفہ، کوئی ایسی بات؟ اس کے مختلف اعمال ہیں روحانی علاج. نمبر ایک بڑے کاغذ کے چاروں کونوں پر یا حق کو لکھ کر آدھی رات کو یا کسی بھی وقت دونوں ہاتھوں پر رکھ کر کھلے آسمان تلے کھڑے ہو کر دعا کیجیے. انشاءاللہ الکریم یا تو گمشدہ فرد جلد واپس آ جائے گا یا اس کی خبر مل جائے گی. جب تک یہ فائدہ ظاہر نہ ہو اس وقت تک یہ عمل روز کرنا ہے. ایک عمل یہ ہے. نمبر 2، 40 دن تک روزانہ 2 رکعت نفل پڑھ کر یا حیو یا قیوم 119 بار پڑھیے، 119 ٹائم. انشاءاللہ الکریم بھاگا ہوا شخص واپس آ جائے گا. نمبر 3، اگر کوئی چیز گم ہو گئی ہو یا کوئی شخص غائب ہو گیا ہو تو لا الہ الا اللہ 1008 بار، 1008 ٹائم پڑھیے. انشاءاللہ الکریم اللہ پاک نے چاہا تو گمی ہوئی چیز یا آدمی مل جائے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ انشاءاللہ الکریم. صلو علی الحبیب. ایک سوال عبد الکریم بھائی کا ہے، وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد آمین کس طرح کہنی چاہیے؟ اتنی آواز ہو کہ آپ خود سن سکیں، زور سے آمین نہیں کہنی ہے. ایک اور سوال آیا ہے فیس بک پہ، اسلامی بہن ہے، وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ کچھ لوگ روزہ نہیں رکھتے ہیں اور پھر دن میں کھانا بھی مانگتے ہیں اور کھانے کا مطالبہ کرتے ہیں، تو ان کو کھانا دینا کیسا ہے؟ اس پر پہلے بھی تفصیل بیان ہوئی تھی کہ اگر وہ ایسا ہے کہ اس پر روزہ فرض ہے اور بظاہر کوئی عذر نہیں ہے، اس کو مریض یا مسافر وغیرہ نہیں ہے، تو اس کو کھانا نہیں دینا چاہیے. أنا مصطفى قاسم من مدينة غازي عنتاب، بدرس بمركز فيض المدينة وبقرأ القرآن الكريم، بس بلاقي صعوبات فيه. سيدي الشيخ بدنا نصائح منك وتوجيهات بلكي بنحفظه بسرعة. ترکی کا سوال تھا، ان کو سبق یاد نہیں ہوتا، حافظے کی کمزوری. تو اس میں ایک عمل تو یہ ہے کہ پانچوں نمازوں کے بعد یا عالم ہو یا علیم ہو یا حافظ ہو یا حفیظ ہو یا ناصر ہو یا نصیر ہو 5 بار یا 7 بار یا 11 بار پڑھ کر اپنے سینے پر دم کر دیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. انشاءاللہ حافظہ مضبوط ہوگا، یادداشت مضبوط ہوگا، میموری انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے امیر اہل سنت، آپ کی بات میں عرض ہے کہ مدنی مذاکرے میں آپ نے ایک سوال کے جواب میں ارشاد فرمایا تھا کہ اچھے لوگ مجھے اچھے اور برے لوگ برے لگتے ہیں. تو حضور عرض ہے کہ اگر آپ کے کسی مریض سے بتقاضۂ بشریت گناہ ہوتے ہوں تو آپ اس کی پی رہے ہیں، تو کیا پھر بھی وہ مرید آپ کو برا لگتا ہے؟ دعا فرما دے کہ میری جائز حاجات پوری ہو جائیں. یہ جنرل بات کی تھی میں نے. ماں باپ کو بیٹا جو ہے، جو کماؤ پتر ہوتا ہے سر، وہ زیادہ اچھا لگتا ہے، اور جو کماتا نہیں ہے، ستاتا ہے، وہ کم اچھا لگتا ہے. یہ تو اب اس سے تو آپ ظاہر ہے کہ وہ آدمی بچ ہی نہیں سکتا. تو پیر کو بھی جو مرید عبادت گزار ہوگا،
और नेकियां करता होगा तो वो हर एक को प्यार आएगा उसमें और अच्छा लगेगा, वो पीर को भी अच्छा लगेगा। और जो मतलब अमल नहीं करता होगा, नमाजें भी छोड़ देता होगा और बद अखलाकियों का इर्तिकाब करता होगा, तो अरे पीर साहब को दिल में परेशानी तो होगी ना उसको, एक फितरी अम्र है। नेक बंदों से अल्लाह खुश होता है, जो गुनाहगार हों, गुनाह करते हों दीदा दिलेरी के साथ। या ये है कि जो गुनाह करे उसके लिए भी जन्नत है, जो नेकी करे उसके लिए भी जन्नत है, दोज़ख भी तो है ना। फिर वो अल्लाह पाक की रहमत है, उसकी मशीयत है, जिसको चाहे वो बख्श दे। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फेसबुक पेज पर किसी ने इस तरह का मामला डिस्कस किया कि आज हमारे इलाके में किसी घर में मियाँ बीवी में आपस में कुछ बातचीत बढ़ी और उस शख्स ने अपनी बीवी को कत्ल कर दिया। या अल्लाह। तो इस हवाले से उन्होंने कुछ इजहार किया कि अमीर सुन्नत कुछ फरमाए कि ये जो हालात मामलात बढ़ते हैं और इस तरह से जो इंसान अटेम्प्ट कर जाता है, इस मामले में फैमिली को किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। ये गुस्सा आ जाता है ना, गुस्सा बाज़ औक़ात आदमी की अक्ल जो है ना बहर मार जाती है, अंधा हो जाता है और वो अटेम्प्ट कर लेता है। बाद में तो खैर सर पटक पटक के रोएगा, लेकिन बस गुस्से में सुचका नहीं पड़ता। अगर दोनों शरीयत की पाबंदी करें, एक दूसरे के हुकूक का ख्याल रखें और बद अखलाकियों से बचें, नमाजें पढ़ें, तिलावतें करें, नेकियों का सिलसिला हो, तो फिर इस तरह के वाक़यात की बज़ाहिर कोई उम्मीद नहीं है। ये वही लोग होते हैं कि जो ना नमाज पढ़ना होता है, जिन्होंने ना कुरान खोल के देखना होता है, ना किसी अच्छी सोबत से इनको वास्ता पड़ा होता है। घर में अगर है भी तो वो गुनाह भरा चैनल चलेगा और बेपर्दा औरतें आएंगी, नाच होगा, म्यूज़िक चलता होगा, घरों में तरह तरह की जानदारों की तस्वीरें लगी होंगी और गुनाहों का सिलसिला। फिर ये गुनाहों की नहुसत जो है ना बाज़ औक़ात वो तबाह कर देती है। ये भी गुनाहों की नहुसत बज़ाहिर है कि वो ऐसा वाक़या हो गया। बाज़ औक़ात ये दोनों तरफ से ही मामलात होते हैं। इस वाक़ये का तो मुझे पता नहीं, आपने बताया तो मुझे पता चला। लेकिन दर के कत्ल नाहक ये तो है तो हराम और जहन्नम में ले जाने वाला काम। इसमें बंदे अल्लाह का हक भी, कातिल जो उसने अल्लाह का हक भी ज़ाया किया, बंदे का हक भी ज़ाया किया। और हदीस पाक में ये हदीस पाक है कि जिस मुसलमान के कत्ल नाहक में अगर ज़मीन व आसमान वाले सब शामिल हो जाएं, सब मिलकर ये काम करें, तो अल्लाह पाक सभी को औंधा करके जहन्नम में डालेगा। ये मिसाल दी गई हदीस पाक में। मुसलमान का नाहक कत्ल ये कितना बड़ा जुर्म है, बहुत बड़ा जुर्म है, बहुत बड़ा जुर्म है। जैसे नमाज का सबसे पहले पूछा जाएगा, ये इबादत में नमाज, और हुकूकुल इबाद में सबसे पहले ये कत्ल नाहक का मामला पेश होगा। डरना चाहिए और अपने इंशाअल्लाह अखलाक किरदार को दुरुस्त करेंगे तो इस तरह की वारदातों में नुमाया कमी आएगी। जिनके घरों के ये माहौल होते हैं जो मैं अर्ज कर नेकियों भरे, तो उनमें ये वारदातें हैं तो अंडरस्टूड है कि कहाँ होंगी। जो खौफ खुदा वाले लोग होंगे वो इतना बड़ा अटेम्प्ट कहाँ करेंगे। हुज़ूर, इसमें जहाँ मर्द की बात आती है कि गुस्सा आता है, तो घर में भी अगर कुछ इस तरह का कुछ आपके मदनी फूल मिल जाए कि ज़ाहिर प्रॉब्लम है, कारोबार के और नौकरी के मसाइल हैं और आमदनी नहीं है, अब वो जो घर में रिस्पॉन्स या कुछ शेयरिंग हो ना कि भाई शौहर परेशान है तो बीवी कुछ कोऑपरेट करे, घर वाले कुछ कोऑपरेट करे कि ये जो मुश्किल का वक्त आया है इसके पास,
یہ کچھ نکل جائے. اس طرح کے معاملات میں گھر والوں کو ان حالات میں کیا مطلب تعاون کرنا چاہیے؟ صبر کرنا چاہیے. صبر شکر مانگ کر جو کچھ ملا اس کو کھا لینا چاہیے. اس میں ہوتا کیا ہے کہ اگر اس کو بیچارے کو نوکری نہیں مل رہی تو یہ بولا بولی کرے گی، گھر میں پڑے رہتے ہو، کماتے نہیں ہو، اس کو نوکری ملی، اس کی دکان کھلی اور تم کو نوکری نہیں ملتی. اچھا پھر خالی یہ نہیں، اس کی ماں میکا جو ہے یہ بھی ایکٹیو ہوتا ہے، اور داماد جو ہے کہاں پھنس گئے ہم لوگ، کماتا نہیں ہے. بھائی بولے گا میرا بہن ہوئی آرام کھاتا ہے، گھر میں پڑا رہتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا. مطلب یہ جو خاندان جب یہ شروع ہوتا ہے نا تو یعنی کہ گناہوں کا ایک طوفان آ جاتا ہے، اور بعض اوقات پھر غصے میں آ کر اگلا نہ کرنے کی بھی کر بیٹھتا ہے جو اس کو نہیں کرنی چاہیے. لیکن یہ بھی ایک سبب اس طرح کا بھی ہوتا ہے. تو ایسے موقع پر سب صبر کریں. غیبت میں سمجھیں کس کو بولتے ہیں. اب آپ پڑوسن کو بول رہی ہے بیٹی کے ماں کے ہم پھنس گئے ہیں، ایسا ہم کو ملا ہے، شیطان آدمی کماتا ہی نہیں ہے. تو کیا پڑوسن اس کو کماتا کر دے گی؟ اب یہ غیبت ہے، تہمت ہے، کیا دیکھ لیں. جس میں برائی موجود ہے اس کو پیچھے سے بیان کرنا غیبت، اور وہ برائی موجود نہیں ہے اس کو پیچھے سے یا سامنے سے جو بیان کیا وہ تہمت کہلاتی، جو غیبت سے بڑا گناہ اور جہنم کا اس میں سخت عذاب ہے. یہ مطلب ہو رہا ہوتا ہے. خاندان کا ہر فرد بعض اوقات لگا ہوتا ہے اس کو ڈیگریڈ کرنے میں. پھر اس کو نوکری مل بھی جاتی ہوگی، اچھی نوکری کمائی، پھر کیسی ناک کٹتی ہوگی ان کی. یا تم تو کہتے ہو یہ کماتا نہیں ہے، گھر میں پڑا رہتا، تو اچھی جاب اس کو تو ملی ہوئی ہے. بولنا نہیں چاہیے. اگر یہاں پچھتانا نہیں تو آخرت میں پچھتانا پڑے گا، مرنے کے بعد پچھتانا پڑے گا غیبتوں پر، تہمتوں پر. اس لیے صبر سے. اور ٹھیک ہے اگر کہ بعض ایسے ہوتے ہیں، مجھے پتا ہے کہ جن کا کام دھندے میں دل لگتا نہیں ہے، اب اس کی تفہیم کرتے رہیں، اس کو سمجھاتے رہیں، کوئی بھی ایسی صورت نکالیں کہ اس کی پسند کا کام وہ کر لے جس میں آمدنی اگرچہ کم ہو لیکن کرے. اور جو ایسا شوہر بھی کرتے ہیں، بعض ہوتے ہیں جو گھر میں پڑے رہتے ہیں، بیٹا بھی پڑا رہتا ہے، ماں باپ اس کو اٹھا کے نہیں پھینکتے، نہ سب کو کہتے پھرتے کہ ہمارا بیٹا کماتا نہیں ہے، گھر میں پڑا رہتا ہے. بس داماد کے بارے میں کہیں گے، بیوی بھائی کے بارے میں شاید نہیں کہے گی، شوہر کے بارے میں کہے گی. یہ تھوڑا فرق، اچھا خاصا فرق ہے. ویسے تو بھائی کے بارے میں بھی نہیں کہنا ہے، گھر کی بات باہر کرنا یہ کمینے لوگوں کا کام ہے. تو اب وہ داماد بھی گھر کا ہی ہے نا، شوہر تو ہے ہی گھر کا، تو بیوی کا یہ بات کرنا باہر جس کا کوئی مقصد نہیں سوائے غیبت کے، کیا کر دیں گے. آپ نے جس کو کہا، آپ نے ڈیگریڈ کیا شوہر کو، سر کے تاج کو. شوہر کے حقوق اتنے زیادہ ہیں، اگر سر سے لے کر بدن تک اس کے پیپ بھر جائے، زخم ہو جائے، پھوڑے ہو جائیں، اور عورت یہ سارا چاٹے نا، تب بھی اس کے حق کو یہ ادا نہیں کر سکتی. اور کے حقوق ہیں، یہ اس کو اس طرح بدنام کرنا تکلیف ہے. میں سمجھتا ہوں تکلیف کو برداشت کریں، اللہ پاک صبر کا صلہ دے گا. ایسی نیک خواتین ہوئی ہیں نا جنہوں نے صبر کیے ہیں اور آج ان کے مزے ہیں. ہاں، باہر بات کرنے سے اگر نوکری آ جاتی ہو، پھر زیادہ بات کرنے سے چھت پھٹ جاتی ہو، نوٹ کے برساست اس پر ہوتی ہو رقم کی، تو بھی غیبت نہیں کرنی چاہیے. لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، پھر بھی غیبت کی جا رہی ہے اور برائیاں کی جا رہی ہیں. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. آج کل کافی جگہوں پر افطاری کا انتظام کیا جاتا ہے اور لوگ کھاتے بھی ہیں، تو وہاں ایسے لوگ بھی کھاتے ہیں جن کا روزہ نہیں ہوتا، ان کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ ان کے بارے میں کیا کہوں میں، خدا کا خوف ہی نہیں، اگر روزہ ہی نہیں رکھ رہے
फिर अब जो एक गुनाह करता है वो दूसरा गुनाह भी कर डालता है कि चलो ये भी मेरा हक तो है ही नहीं, रोज़ेदारों का हक, उनका हक मार दिया और ये हड़प कर गए। तो ऐसों को तो अंडरस्टूड है कि गैरत और मुरुवत के भी खिलाफ है कि नहीं खाना चाहिए, ना इनके लिए है ये, वरना सारा ही साल ये बटता। रमज़ान शरीफ में ये जो खिला रहे हैं ये अंडरस्टूड है कि सिर्फ रोज़ादारों को ये खिलाना चाहते हैं। ये बेगैरती की इंतहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि रोज़े रखने चाहिए। रोज़े फ़र्ज़ है, और इसलिए नहीं कि मेरे लिए खाना जायज़ हो जाएगा जो रोड पे मिल रहा, नहीं, अल्लाह के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मैं चाहूँगा कि जैसे अभी घर वालों के ताल्लुक़ से आपने माशाअल्लाह मदनी फूल अता फरमाए, स्पेशली कम आमदनी वगैरह, अब महंगाई और कम आमदनी दोनों अब लगी हुई हैं आपस में। अब चूँकि ईद के अयाम हैं तो ख़रीदारी के ताल्लुक़ से भी घर में बाकायदा एक प्रेशर डेवलप हो जाता है, और बच्चों की तरफ से भी और बच्चों की अम्मी की तरफ से भी। तो अगर इसमें भी घर वाले एक ताउन करें और देख लें कि अगर आमदनी इतनी नहीं है, रोज़गार में थोड़ी सी खींचा हुआ है हाथ, मक़रूज़ हो चुका है, कर्ज़े वगैरह भी चढ़ जाते हैं, गाहक वगैरह का भी प्रॉब्लम है, और सैलरी भी इतनी अच्छी नहीं बढ़ रही है, तो फरमाइशी प्रोग्राम में अगर कमी कर दी जाए और शोहर को थोड़ा सा रिलैक्स दे दिया जाए या बेटे को रिलैक्स दे दिया, बाद वक़्त शादीशुदा नहीं होता लेकिन बहनों की तरफ से या माँ की तरफ से या बाद वक़्त अबू की तरफ से भी इस तरह की कुछ फरमाइशें चल पड़ती हैं, तो बच्चे यूँ जैसे परेशान से हो जाते हैं। तो अगर हर तरफ से ताउन का एक बार फिर अगर आपकी तरफ से हो जाए और पूछ लिया जाए, अगर भाई ये गुंजाइश है, इस गुंजाइश में हमें करना है, उमूमन मर्द कह देते हैं कि यार ये गुंजाइश है, इस गुंजाइश में करना है, तो फिर उसको ताना तनकी जैसा भी आपने थोड़ी देर पहला करने के बजाय उसी गुंजाइश में जो एक शरीयत के तकाज़ों को पूरा करता हुआ उर्फ़ आदत शरीयत के मुताबिक वो कम्प्रोमाइज़ कर लें और माहौल ना ख़राब करें। वाकई ईद के मौके पर भी बड़े झगड़े होते होंगे, बड़े मसाइल होते होंगे। हालांकि ईद ना अच्छे कपड़े पहनने का नाम है, ना उम्दा खाने इस्तेमाल करने का नाम। ईद तो एक यौम तशक्कुर है। अल्लाह पाक ने माह रमज़ान जैसी नेमत से सरफराज फरमाया वो, और इसके बाद बंदों ने एक माह तक भूख और प्यास बर्दाश्त की, तो खुशी का दिन अल्लाह पाक ने अता फरमाया। तो खुशी के मौके पर अल्लाह का शुक्र अदा करे, इबादत मज़ीद करे, खैर खैरात करे, बेशक अपने बाल बच्चों पर भी फराकी करे। अब जिसका हाथी बेचारे के तंग है ऐसा ना करे। हज़रत सैयदना उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह, इनकी बच्चियों ने अर्ज़ किया कि अबू ईद आ रही है, क्या हम यही पुराने कपड़े पहनेंगी ईद में? अब हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ी अल्लाह अन्हु अपनी ज़रूरत का ही बैतुल माल से वो लेते थे खर्च, गुंजाइश तो थी नहीं कपड़े बनाने की। हालांकि वो खलीफा हैं, लेकिन ऐसे खलीफा बस तारीख़ में हैं, अब तो मुश्किल है। सारा ख़जाना अब तो अपने पास होता है, इनका ख़जाना लोगों के लिए बहुत था, अपने लिए नहीं था। तो आपने खैर उनको बुलाया, जो ट्रेजरर था खाजिन, उनसे फरमाया कि ऐसा करो, अब कल ईद आ रही है, बच्चियों को नए कपड़े सिलवाने, मुझे एडवांस तनख्वाह दे दो। तो खाजिन जो था वो भी होशियार था, खौफ खुदा वाला था। तो उसने, ट्रेजरर ने, खाजिन ने अर्ज़ किया, या अमीरुल मोमिनीन, आपका हुक्म है तो मैं हाजिर तो कर दूंगा, लेकिन ये आप देख लें कि क्या आप आइंदा माह जिंदा रहेंगे, ये आपको गारंटी है? जो आप ये एडवांस में तनख्वाह लेंगे तो वो कटौती हो जाएगी उसकी। आप घबरा गए, खौफ खुदा से कांप उठे, और नहीं चाहिए। आज अगर मेरा ट्रेजरर इतना समझदार ना होता तो मैं हलाक हो जाता। बच्चियों से शफकत से फरमाया कि बच्चियों, ईद नए कपड़े पहनने का नाम तो है नहीं, इन्हीं कपड़ों में ईद कर लो। एक तो ये थे कि वाकई नए कपड़े, अब नए कपड़े भी पहनते हैं तो कौन सा सुन्नत के मुताबिक सिलवाते हैं, एक से एक
बागड़ बिल्ले टाइप के लिबास और तराश खराश और पता नहीं क्या डिजाइनिंग और क्या क्या होता है, सादगी का तो नाम भी नहीं सुना होता शायद। तो इससे तो अब इस लिबास को तो वैसे भी ईद में कोई पजीरा ही नहीं है। बेशक ईद के लिए नए कपड़े पहने मुस्तहब है, नए हो या सबसे उम्दा कपड़े, नए से मुराद उम्दा, नए उम्दा कपड़े पहने, या फिर ये कि जो घर में उम्दा कपड़े पहले से मौजूद हों भले वो धुले हुए हो वो पहने, ये भी मुस्तहब है, फर्ज वाजिब नहीं है। नहीं पहना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन इसके लिए जितना मतलब हिसाब किताब हो रहा है लिबास के लिए, खाने के लिए भले कुछ 19-20 होगा चल जाएगा, लिबास में नहीं चलेगा। लिबास का इतना ख्याल होता है। यानी अभी से मतलब हाउसफुल का बोर्ड लग गया होगा, यानी बास दर्जियों क्या जिनकी चार्ज ज़्यादा होता होगा तो वो अच्छे दर्जी कहलाते होंगे, हो या ना हो वो अलग बात है। तो इस तरह वो बुकिंगें हो गई होंगी। ईद के कपड़ों के लिए पहले से बुकिंग, रमज़ान से पहले सब खरीदारियां और मुकम्मल मतलब तैयारी। रमज़ान में इबादत की क्या तैयारी की, ईद के लिए क्या इबादत की तैयारी की, कुछ तसव्वुर भी नहीं है इसका। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अपनी जो भी हैसियत है अल्लाह ने जो दिया है उसी में से करे, जितनी चादर है उतने ही पाँव फैलाए, वरना फिर परेशानी का सामना हो सकता है। कर्जे लेकर अगर बना भी लिए तो बाद में नहीं भर सके तो रुसवाई। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि। मक़रूज़ होने से किस कदर एहतियात करनी चाहिए कि मैं मक़रूज़ यानी कर्ज़ मुझ पर कम से कम हो या कर्ज़ ना हो, इसमें कितनी एहतियात करनी चाहिए और इसमें क्या क्या ख़तरात भी हो सकते हैं? कर्जा लेना देना ज़रूरत है, लिया किसी ने, देने वाले ने दिया, वो तो जायज़ है। अलबत्ता अब इसमें भी जिस तरह और मामलात में खराबियां बहुत घुस गई हैं, इसमें भी ऐसा ही है। अब जिसने कर्जा लेना वो है, वैसे उसके लिए यही है कि एहतियात करे, कि पहले गौर करे कि भर सकेगा या नहीं। अब अगर उसको पहले से नीयत में खतरा है कि यार ले तो लोग भरते रहेंगे, देखिए जाइए, तो अब ले लिया और फिर उसको तरखाते रहे, धक्के खिलाते रहे। ये होता है कर्जा लेना है तो वो जिससे लेना उसके घर के फेरे करता है, और जब उसने दे दिया अब छूटे पड़े, अब वो ढूंढता फिर आपको वसूल कर ले, और अब आपके फेरे करेगा। अजीब उसूल है। तो खैर, तो इस तरह मतलब है कि अगर दबा लिया तो आखिरत में मर जाएंगे। वो आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह नकल करते हैं, जो दुनिया में किसी के तकरीबन 3 पैसे दैन मसलन कर्ज दबा लेगा, बरोज़ क़यामत उसके बदले 700 बाजमाअत नमाजें देनी पड़ जाएंगी। हवाला फतह रज़विया शरीफ जिल्द 25 पेज नंबर 69 और रिसाला जुल्म का अंजाम पेज नंबर 14-15। तो ये बात जमात, क्योंकि हम अंडरस्टूड है, मकबूल होगी तो ही मिलेगी, अगर यहीं रद्द हो गई तो फिर वो क़यामत के दिन अपने पास होगी क्या। तो पैसे तो इतनी पुरानी चीज हो गई, अब तो न्यू जनरेशन ने देखा ही नहीं होगा। ये बहुत कलील रकम की भी इतनी सारी नमाजें जिसका कर्जा दबाया है ना, उसको देनी पड़ेंगी। कहाँ से लाओगे? अव्वल तो नमाजें हैं नहीं, और जो हैं अगर पढ़ते भी हैं तो पढ़ना कितनों को आता है, कबूल हुई इसका किस किस को पता है। 700 नमाजें कहाँ से लाएंगे? तो फिर हुकूकुल इबाद के मामलात इससे सख्त हैं कि अगर अपनी नेकियों के जरिए उसको पूरा होप कर भी दिया तो भी ज़ाहिर बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, और वरना ये कि उसके गुनाह लेने पड़ेंगे, उसके गुनाह इसके सर पे आएंगे
اور یوں یہ نیک بندہ اگر دنیا میں تھا بھی لیکن بندوں کے حق تلف کیا تو یوں یہ جہنم کا رخ کرے گا، پھنس جائے گا. خالی پیسوں کا نہیں، پھر ہر معاملے کا ہے. کسی کو مارا پیٹا ڈرایا ناحق جو بھی ظلم کیا ستایا، یہ سب اس میں آ گیا. اس میں نیکیاں دینی پڑیں گی. ماں باپ کو ستاتے ہیں، بھائی بہنوں کو دکھاتے ہیں، کسی کو نہیں چھوڑتے. اتنا مطلب ہے کہ بندوں کی حق تلفی تو یہاں معتکفین جو ہیں یہ بھی غور کر رہے ہیں بیٹھے بیٹھے. کوئی بیچارہ جس کو کچھ نکلا وہ پاؤں لگ گیا، ابھی اندھا ہے دیکھتا نہیں ہے، دانت مار دی مجھے. تو پھر وہ بھی ہو سکتا ہے کہ باپ کا باپ نکلے، چل رستے میں بیٹھا ہے یہ تو معمولی سا لگا ہے، ابھی دیتا ہوں، باہر نکل تو. کیا پتا وہ طرح طرح کے یہاں رنگ روٹ آتے ہیں. بعض ہوتے ہیں کہ جن کو کچھ بھی پتا نہیں ہوتا، وہ کوئی سمجھا بجھا کے بھیج دیتا ہے کہ یہ صحیح ہو جائے گا. تو مگر یہ کہ بعض اوقات مسئلے کر دیتے ہیں ایسے لوگ. کرنے نہیں چاہیے. کسی کو کہ دھاک دھمکی دی ہے تو معافی مانگ لیں. اب بھی مطلب ہے کہ صلح کر لیں ورنہ قیامت کے دن مشکل ہو جائے. تو اللہ پاک کے بس عافیت نصیب فرمائے. کسی کا قرضہ اگر ہے تو دودھ میں دھو کر دے دیں، یہ محاورہ ہے. آپ اس کو آج تو تنخواہ دیں گے. اگر آپ پاورفل ہیں، بدماشی ہے اپنے اس میں، اس کو ہو سکتا ہے آپ بول دیں گے وصول کر لیں. بعض وہ وصول کر بھی لیتے ہیں. پھر یہ وہ بڑے بدماش سے رابطہ کرتے ہیں، آدھا تیرا آدھا میرا، اس کو تو سبق دینا ہے، میرے کو یوں بولا ہے. پھر لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں. پھر بھی آخرت کی تو تباہی. تو اس لیے وہ آپ کیسے ہی ہوں آپ دے دیں. اگر قرضہ ہے تو دے دیں، اسے ادا کر دیں. ایک ایک پائی ادا کرنی پڑے گی. اور جو لیتا اس کو چاہیے کہ وہ نرمی کرے، تقاضے میں وہ نرمی کرے تو انشاءاللہ اس کو بھی اس کا اجر ملے گا. مہلت دے، مہلت پر مہلت دے. اگر واقعی وہ تنگ دست ہے تو اس کا بھی اپنا اجر ہے، ثواب ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. آؤ سیکھیں بھلائی کی باتیں، سب کو سکھائیں چاچا چائے پیو گے؟ بھلائی کی باتیں. مولانا صاحب یہ ارشاد فرمائیں کہ مخاطب کرنے کا انداز کیسا ہونا چاہیے؟ کیا بچوں کو اور بڑوں کو مخاطب کرنے کے انداز میں کیا کوئی فرق ہے؟ انڈرسٹوڈ. بچے کو بچے کے انداز میں بلایا جاتا ہے. ہر ایک کے ساتھ اس کی منزل جو اس کا منصب ہوتا ہے اس کے مطابق بات کی جاتی ہے. اب آپ نے دو کو مخاطب کیا، مخاطب کیا، جس سے خطاب کیا اس کو مخاطب، خود مخاطب. تو آپ نے مخاطب کیا دو کو. اپنے انداز پر غور کر لیں دونوں میں فرق تھا یا نہیں؟ یہ تو فطری امر ہے کہ کسی کے چھوٹا ہوتا ہے اس کے سامنے آدمی وہ جس طرح بات کر رہا ہوتا ہے اتنی احتیاط نہیں ہوتی. اپنا ہم سائز ہے. پھر اس میں بھی دیکھیں گے کہ اگر فری ہے اس سے انداز کچھ ہوگا، جسے فری نہیں ہے اس سے انداز کچھ ہوگا. وہ کوئی بزرگ ہے اس کے سامنے آواز نہیں نکلتی، آہستہ نکلتی ہے. بڑا رقت یا رقت نہیں ہوتی، بڑا خاشعانہ انداز ہوتا ہے، نرمی والا. یا دنیاوی کوئی افسر ہے، سر اب بھلے وہ سراپا شر ہے لیکن اس کو سر بنا دیتے ہیں. سر اس کو بھی بولتے ہیں، سر شاید جناب کو بھی بولتے ہیں، مسٹر جناب کو بولتے ہیں. سر بہرحال احترام کا لفظ ہے، ریکویسٹ وہ بہرحال رسپیکٹ کا لفظ ہے سر. تو اس کو سر کر رہے ہوتے ہیں نا. تو ہر ایک کے ساتھ اپنا اپنا انداز ہوتا ہے. لیکن جو بھی انداز ہو وہ توہین آمیز نہ ہو. بڑوں کی تو توہین کیا کرے گا، وہ پتہ ہے کہ وہ سر پھر ہے، اس کا سر پھرے گا تو پھر اپنی نوکری بھی چلی جائے گی اور بہت کچھ نقصان ہو سکتا ہے. لیکن چھوٹوں کے ساتھ شفقت، برا انداز ہو،
बड़ों के साथ अदब भरा अंदाज हो, जो छोटों पर शफकत नहीं करता, जो हमारे बड़ों का अदब नहीं करता और छोटों पर शफकत नहीं करता, वो हम में से नहीं। ये प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस तरह फरमान है। इसलिए वो मौके मौके की मुनासबत से वो सब अखलाक के दायरे के अंदर, लेकिन जो एक खाका दिखाएगा ना, इसमें जिसने सवाल किया उसका जो अंदाज है ना, वो अंदाज जो है ना, वो ये कह सकते हैं कि मतलब बाजारी स्टाइल दिखाया गया है इसमें। खैर एक अंदाज दिखाया गया, वो बाजारी लोग जो होते हैं ना, बड़े हो या बेतबे वाले, उस अंदाज से उसको बुलाया, उसको पूछा भी, चलो हमदर्दी की अच्छा काम किया। एक पूछने का अंदाज भी वो, ये भी होता है कि हम लोग पूछते हैं, जाके पेश करेंगे ना तो शायद कबूल कर ले, ये हिम्मत नहीं होती ना, पेश करेंगे ना कबूल कर लेगा तो ले लेगा तो फिर खर्चा होगा। हाँ पिएंगे तो पहली बार में तो कोई भी होगा थोड़ा ना बोलेगा, हाँ 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 दे दो, ऐसा नहीं करेगा, वो शर्माएगा क्या। तो दूसरी बार तीसरी बार नहीं 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 पियो पियो नहीं 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 पिए, आप पिए, पीना पड़ेगा। तो फिर आप देखें वो पीता है कि नहीं पीता है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लू अलल हबीब। इस्लामी बहनें अगर जैसे तरावी पढ़ती हैं, दिन में अगर एक पारा पढ़ें और एक पारा तरावी के अंदर पढ़ लें, आयत इस अंदाज से उनका कुरान पाक पूरा कंप्लीट हो जाएगा, मना जाएगा। दिन में भी कुछ तिलावत कर ली कहा शायद एक पारा दिन में पढ़ लिया, हाँ, और फिर तरावी पढ़ी तो उसमें एक पारा पढ़ लिया, 2 पारे हो गए। तो यूं 15 पारे इनके तरावी के अंदर, 15 पारे, तो इस तरह कह रहे हैं हो जाएगा। असल तरावीह में कुरान करीम ख़त्म करना ये सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया, ताकीदी सुन्नत है। मगर ये कि जैसे कि महल्ले में, इलाके में कुछ लोगों ने इस तरह कर लिया कि तरावी में कुरान करीम ख़त्म हुआ, एक हाफिज ने पढ़ा दिया, दूसरों ने पढ़ लिया उसके भी, तो अभी सब इलाके वाले और की तरफ से समझे कि वो काफ़ी होगा। अगर एक ने भी नहीं किया तो फिर सब सुन्नत के तारिक हुए, तर्क करने वाले हुए। दिन में पढ़ना इसमें शामिल नहीं है, अलग से पढ़ना भी शामिल नहीं है, तरावीह में पढ़े। वो गालिबन जो आपने हदफ दिया है ना 3 कुरान पाक ख़त्म करने का, तो शायद उस हवाले से पूछना चाहते हों कि अगर इस तरीके से पढ़ लिया तो क्या वो उस हदफ के अंदर आ जाएगा। अव्वल तो 15 पारे पूरे महीने में तरावी कहीं होती हो, ये तो यानी इस्लामी बहन पूछ रही। अच्छा इस्लामी बहन तरावी तो हाफिजा होगी जी, हाँ, तो इस तरह वो नमाज में एक पढ़े और एक उसमें पढ़े। हाँ नहीं तो इन पर तो सुन्नतुल मुअक्कदा अल किफ़ाया है भी नहीं, तो मर्दों के लिए। अच्छा अब ये कि वो जो हमने जो ऐलान किया है कि 3 कुरान करीम का ख़त्म करे तो वो नुमायाँ मुमताज़, 2 करे तो बेहतर, और 1 करे तो पूरे माह रमज़ान में तो मुनासिब है ना। तो चलो मुनासिब की कैटेगरी में इनको इस तरह जो करे उसके लिए भी छूट है, करे तो सही। ऐसे करने वाले कितने, किसी तरह भी तिलावत पे लगाना है, कुरान करीम लोगों को पढ़ने का जज्बा देना है बस। और फिर ये क्या सिर्फ माह रमज़ान ही में तिलावत क्यों, अल्लाह करे सारा साल हम करें। रमज़ान शरीफ में एक जज्बा बढ़ता है, लेकिन सारा साल कुछ ना कुछ जारी रखना चाहिए। वैसे भी हमारे शजरे में तो रोज़ाना 1 पारे की तिलावत का लिखा है, हर महीने ख़त्म करना है कुरान करीम। अल्लाह नफ्स तौफीक अता फरमाए। देशों के तिलावत देशों के इबादत, देशों के तिलावत देशों के इबादत, देशों के तिलावत देशों के इबादत,
सदाया इलाही गुनाहों से मुझको बचाया इलाही गुनाहों से मुझको बचाया इलाही। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद मुबीन ज़त्तारी है और अमीर सुन्नत में आपसे सवाल है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ड्रेस किस तरह का हुआ करता था? लिबास जी, लिबास प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मुबारक लिबास। अब जैसे कि अब जो हमारा लिबास है ना, वो अंदाज दूसरा है। ज़्यादातर दो चादरों में आप मलबूस रहते, एक चादर ऊपर के बदन की, एक तहबंद शरीफ की, और इसके अलावा और लिबास भी पहनना साबित है, जुब्बा शरीफ, कुर्ता शरीफ। फिर उसमें ऐसा है कि बाहर शरीफ में ये लिखा है कि सुन्नत के तौर पर कि कुर्ता पहने तो लंबाई उसकी आधी पिंडली तक हो। आजकल इसका रवाज नहीं है, नहीं पहनते लोग, आधी पिंडली तक हो, और ये आस्तीन एक बालिश्त चौड़ी हो, इसकी तरफ भी तवज्जो नहीं होती। और मेन तो यही इस वक्त तो याद आ रहा है कि लंबाई और इसकी ये, बाकी अभी चौड़ाई का तो अपने अपने बदन का भी हिसाब होता है ना, किसी कोई पतला होता है, कोई मोटा होता है, फर्क पड़ जाता है। और वो पाजामा जो है, पाजामा पहनना साबित नहीं है, हमेशा आपने तहबंद इस्तेमाल किया, तो टखनों से ऊपर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तो वो कर आधी पिंडली तक और टखनों से ऊपर तारीफ भी फरमाई है कि इसमें सत्तर ज्यादा है, पर्दा ज्यादा है इसमें। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज्यादातर सफेद लिबास इस्तेमाल किया, और इबादत में खासकर जैसे नमाज वगैरह में तो सफेद लिबास की खास मतलब पजीराई है। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सब में अच्छे वो कपड़े जिन्हें पहनकर तुम खुदा की जियारत कब्रों और मस्जिदों में करो, सफेद हैं। यानी सफेद कपड़ों में नमाज पढ़ना और मुर्दे कफनाना, मुर्दों को कफन देना अच्छा है। ये बाहर शरीफ की इबारत अपने सुनी, इसको अपने 550 सुन्नतें और आदाब, पेज नंबर 52 यानी 52 से मैंने ये रिवायत आपको सुनाई। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम जब बारगाह रिसालत में हाजिर हुए थे, तो जो मशहूर हदीस है जिसको हदीस जिब्रील कहते हैं, तो उसमें आप सफ़ेद लिबास के अंदर थे। तो वहाँ भी फिर उलमा ने यही बात लिखी कि तालिब इल्म दीन के लिए ये मुस्तहब है, बेहतर है कि जब पढ़ने के लिए आए तो सफ़ेद लिबास पहन कर आए। इसी तरह हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कुरान पढ़ने वालों के लिए भी सफ़ेद लिबास ही पसंद किया करते थे। हमारे जामियातुल मदीना का ड्रेस तो सफ़ेद है, इमामा भी सफ़ेद, कुर्ता पाजामा सब सफ़ेद है, और बड़े अच्छे लगते हैं। सारे सफ़ेद में होते हैं ना, जब ढेर सारे आते हैं तो मज़ा आता है देखने में, चारों तरफ नूर बरस रहा है, जैसे सफ़ेद इमामे की बिल्कुल बाहरें होती है। कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे पहले जिसने पाजामा पहना वो हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह हैं अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हज़रत इब्राहीम की भी सुन्नत पाजामा। अमीरुल मोमिनीन हज़रत अलीजुल मुर्तदा शेर खुदा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए अल्लाह मेरी उम्मत के पाजामा पहनने वालों को बख्श दे। ऐ लोगों पाजामे पहनो कि ये तुम्हारे कपड़ों में सबसे ज्यादा सत्र पोशी करने वाले हैं और इनके जरिए
अपनी बाहर निकलने वाली औरतों की हिफाजत करो, औरतों को भी पहनाओ, गलबन यही बनेगा माना कि औरतें भी पाजामा पहने। फदा रज़विया शरीफ में कि बिल जुमला इन्हें ये रिवायतें नकल करने के बाद आला हज़रत फरमाते हैं बिल जुमला पाजामा पहनना बिला शुबा मुस्तहब बल्कि सुन्नत है। वो सुन्नत तो वही कौली सुन्नत। जी आगे लिखा है हज़रत ने कि इल्लम यकुन फ़िअलन फ़क़ौलन इल्ला फ़ला अक़ल्ल मिनल इस्तिनानी तक़रीरन कमा अलिमता। यानी इसका मतलब ये है कि ये अगर फ़ेली एतबार से सुन्नत नहीं तो कम अज़ कम कौली एतबार से, अगर कौली भी ना माना जाए तो उसको तकरीरी सुन्नत कहते हैं। यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी काम को देखा और उसको बरकरार रखा तो ये भी सुन्नत के अंदर आता है। सुभान अल्लाह। सही सनद के साथ प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाजामा शरीफ खरीदना साबित, जबकि पहनने के ताल्लुक से ज़ईफ़ रिवायत के मुताबिक आपने पहना भी है सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो दुआए मुस्तफ़ा मिल रही है पाजामा पहनने वालों को, सुन्नत की नीयत से पहने, ज़ाहिर नसीब सुन्नत के मुताबिक हो, ये अपने टखने से ऊपर हो। तो शलवार भी इसमें दाखिल है पाजामे में, है ना। यानी पाँव का लिबास, पा यानी पाँव, जामा माने लिबास, और लिबास ऐसा हो जिसमें बेपर्दगी ना हो। जैसे अब वो चूड़ीदार पाजामा भी पहनते हैं लोग, या बाज भी अब वो चुस्त पाजामे है, पूरे जिस्म की हैअत इसमें नज़र आती है, तो कैफियत। और ये बदकिस्मती से लड़कियां पहनती हैं, जवान लड़कियां, तौबा अस्तगफिरुल्लाह। तो ये ज़ाहिर है कि ये तो मतलब सुन्नत से हटकर ही हुई, बल्कि तो ख़तरनाक है। लेकिन अब पाजामे की भी तरह तरह की हमारे यहाँ अक़साम पाई जाती हैं। इसमें यह कि जो जायज़ सूरत है वो जायज़ है, अगर सुन्नत की नीयत से वो जायज़ सूरत में बंदा पहनता है जबकि वो सुन्नत के ख़िलाफ़ ना हो, सवाब पाएगा। इसी तरह लिबास में ऐसा है कि बाज़ इस तरह भाई सिलवाते हैं आधी पिंडली तक समझ कर, लेकिन ये कि वो होता नहीं है, वो दर्जी से भी तरकीब थोड़ा आउट हो जाती है। अच्छा, अब आपको चेक भी करना, आप झुक कर देखेंगे तो आधी पिंडली तक आ जाएगा या नीचे आ जाएगा, इससे खुद नहीं देख सकते, इसको मुश्किल है। खड़े होंगे ना, आपको कोई देखेगा और आपको बताएगा कि आधी पिंडली तक है या नहीं है, तो पता चलेगा। ये बड़ा होता है ना, तो यूं कुर्ता तो बैठते वक्त इसको आदमी सही कर लेना तो पर्दे में पर्दा हो जाता है, वरना छोटे छोटे आजकल तो खैर इसका तो रवाज ही, अब तो टी शर्ट भी पुरानी चीज हो गई, पता नहीं अब तो क्या क्या पहनते हैं, और बिल्कुल यानी कि आगे पीछे सब नजर आ रहा होता है। पर्दे में होता है, लेकिन पर्दे की जरूरत जो है वो पूरी नहीं हो रही होती, और हया भी नहीं है, इसको कोई महसूस भी नहीं करता, किसी को छेड़ने जैसा है भी नहीं तो वो फिर मस्जिद में भी नहीं आएगा, नमाज में भी नहीं आएगा, ना इज्तिमा में आएगा, छेड़ने वाली बात नहीं है। अब सवाल किया तो मैंने अर्ज किया कि फिर सादगी, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाली सादगी, तो वो भी चली गई, अब हमारे दरमियान सादगी ना रही। हाँ, जब कोई वफ्द हाजिर होता तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्दा लिबास ज़ेब तन फरमाते हैं, और जुम्मा ईद के लिए भी उम्दा लिबास की आपके यहाँ तरकीब रहती, इस तरह की ज़रूरत के मुताबिक। ताहम अब उसको भी सादगी के ख़िलाफ़ तो नहीं कहा जाएगा। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई भी काम अपने नफ्स के लिए नहीं किया, जिस तरह हम लोग नफ्स के लिए करते हैं ना, न कभी फजूल लफ्ज़ अपने मुबारक ज़बान से अदा फरमाया, न फजूल इधर उधर नज़र डाली। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर काम सवाब वाला होता, एक लम्हा भी ज़ाया ना होता, हर वक्त जिक्र। अच्छा, अब जिक्र से मुराद है कि ज़बान चले तो ही जिक्र हो, ये ज़रूरी नहीं है, जिक्र बिलक़ल्ब भी होता है, तसव्वुर में भी जिक्र होता है। इस तरह मतलब है कि अल्लाह पाक के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज, फिर इमामा शरीफ, हमेशा सर पर इमाम शरीफ का ताज सजा रहता, अलबत्ता टोपी शरीफ को भी नवाजा है अपने, और घर में रिवायतें मिली हैं कि घर में, आपके मुबारक घर में टोपी शरीफ के साथ भी रहना, ये भी साबित है। लेकिन अब वो नीयतें नहीं होती ना हमारी,
सुन्नतों की नियतें। और अब तो नंगे सर का दौर आ गया, अब ये भी बोल रही ऐसा नहीं है। पहले नंगा सर मायूब समझा जाता था। एक दौर में जब इमाम के सामने आए या बुजुर्गों के सामने आते थे ना, तो अपने जेब में लोग रुमाल रखते थे, रुमाल ओढ़ लेते थे नंगे सर आने को। ये न बेनमाजियों की बात कर रहा हूँ, जो आली मवाली होते हैं ना, जो वो भी बुजुर्गों का अदब करते थे, नंगे सर कतराते थे जाने से। अब तो मस्जिदों में नमाज पढ़ रहे हैं, अब बोलेंगे तो मस्जिद आना छोड़ देंगे। पहले ऐसा होता था कि नंगे सर लोग फिरते थे। मैं अपने दौर की बात कर रहा हूँ, लेकिन जेब में रुमाल या टोपी रखते थे जाली वाली, तो जरूरत है वो पहन लेते थे। रमजान में खासकर वो टोपियां नजर आती रहती थी। अब तो शायद बाल भी, अब तो एक थोड़ी खाल होती है, थोड़े बाल होते हैं, घोंसला टाइप का बाल लोग बनाते होता नहीं। अब मैंने बोल दिया, मदनी चैनल पर बोल दिया, मुबल्लिगीन ये बातें नहीं करें और ये आपको सुनेंगे नहीं, ये चले जाएंगे। और कोई इस तरह के हो तो उनको देखना भी नहीं है, तो ये वरना कतराएंगे। हालात बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब है। पहले में ये पीछे जो बनाते हैं ना, वो पोनी, आप पोनी अपने बोलते हो? ये औरतें नहीं बनाती वो, मतलब पीछे पोनी या चोटी। तो इस तरह की चोटियों का रवाज काफ़ी में नजर आता था। मैं मदनी चैनल पर बोलता था। फिर एक बार मेरे को चौंका कब मैं एयरपोर्ट पर किसी मुल्क जा रहा हूँ, तो एक इसी तरह का वो पोनी और बिल्कुल आया, बड़ी अकीदत से मिला। क्या मेरी बत्ती हुई। मैंने कहा यार, अगर ये मुझे सुन लेता तो शायद चुप भाग जाता। तो फिर मैंने बोलना छोड़ दिया कि ऐसों को करीब लाना, भगाना नहीं है, कि इनमें भी यानी कि मोहब्बत होती है, दीन की तरफ रग़बत होती है। वरना मैं तो मजहबी आदमी था, मैं तो उनको जानता भी नहीं था, ये बड़ी अकीदत से मिला उसने। तो यूं ये क्या, इसीलिए मैंने कहा कि अब सवाल हुआ तो मैंने कुछ अर्ज किया। अरे वो चीज़ जो भी है, पोनी है या पोना है, जो भी है, वो अच्छी चीज़ तो नहीं है ना, है तो मतलब गुनाह वाली चीज़ ना, औरत की नक्काली है ना, औरत की मुशाबत है। तो यूं बहुत सारी फैशन और बालों का तो ऐसा अजीब हिसाब हो गया। मैं तो हैरान हूँ, मैं बोलता नहीं किसी को कि ये तुमने यार क्या ये मसला है। आधा सर थोड़ा यूं वो मशीन फ्री हुई, फिर आधे बाल, बाद घोंसले की तरह बाल रखते हैं। तो ये पता नहीं क्या है। किसी होता, कोई फिल्म एक्टर होता है ना मशहूर, वो कोई हरकत करता ना, तो ये कौम उसके पीछे चल पड़ती है। ये ऐसी कहानी होती है इनकी। और जो आशिक रसूल होता है वो सिर्फ एक पर नजर रखता है, वो मदीने में मेरे आका है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो उनकी सुन्नत को देखेगा कि इन्होंने कैसे बाल रखे, वो इन जैसे बाल रखने। सर पे क्या रखा, तो इमामा शरीफ सजाना है। कैसा लिबास पहना, तो अब ये तो मुश्किल है कि उस पर बात चीज़ें ऐसी होती है कि हालात के एतबार से उस पर अमल नहीं हो सकता। जैसे वही 2 चादरों का मैंने बताया ना, कि अब अगर 2 चादरें हम ओढ़ कर बाहर निकलेंगे ना, तो लोग हमसे दूर भागेंगे, हमारी एक भी नहीं सुनेंगे, ख़ानदान पूरा खिलाफ हो जाएगा। तो इसलिए वो तनफीर की सूरत बन जाएगी। तो इसलिए अब वो 2 चादरों की तो इजाज़त भी नहीं दी जाएगी इस हालात में, कि लोगों में, वरना वो बुरा भला बोलेंगे, उल्टा सीधा बोलेंगे। बात सूरत में कुफ्रियात बक देते हैं लोग। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने यहाँ तक फरमाया कि शिमला जो पीछे रखते हैं ना, इमामे के पीछे शिमला, तो अगर जहाँ इसका लोग मजाक उड़ाते हों, तो ये है तकरीबन तवातुरुल माना हदीस से साबित, ये शिमला। आला हज़रत ने फरमाया कि फिर ये शिमला ना रखें वहाँ, बगैर शिमले के पहने, कि ये भी सरकार से साबित है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे ये शिमला, ये जो कपड़ा लटकता है ना पीछे, इसको शिमला बोलते हैं। मजाक में माज़अल्लाह हो सकता है कोई दुम वगैरह बोलते हो तो तौबा, मजाक तो उड़ाएगा, तो वही ना ईमान का मसला हो सकता है इसके। आका की सुन्नत, और ऐसी सुन्नत जो साबित है इतनी, उसको तो इसीलिए वो चादरों का भी लोग मजाक उड़ाएंगे। सब्ज चादर में एहराम साबित है सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। अब कोई बोले कि मैं सब्ज चादर में तवाफ करूं या हज में मैं सब्ज चादर पहनूं, है ना, लोग उसको तमाशा बना देंगे। अपनी
इल्म की कमी की वजह से बना देंगे। यार ये क्या सारी दुनिया पागल हो गई है, सफ़ेद एहराम बांधा, तुमने ये क्या नई चीज़ शुरू कर दी। हालांकि बेचारे ने नई चीज़ शुरू नहीं की, इसने मोहब्बत रसूल में ये सब्ज़ पहन लिया है, लेकिन ये लोग चूँकि लोगों को इल्म नहीं है, मालूमात नहीं है, तो इसलिए वो लोगों के तौर तरीके से जुदा नहीं होना चाहिए जब तक कोई शरई मतलब रुकावट ना हो। अब दाढ़ी मुंडाना भी आम हो गया, दाढ़ी पर भी लोग बातें करते हैं, तो अब दाढ़ी नहीं छोड़ेंगे क्योंकि ये ऐसा तरीका नहीं है जिसमें कोई रियायत मिल जाए। फिलहाल हमारे यहाँ तो कोई रियायत नहीं है दाढ़ी, और अल्हम्दुलिल्लाह लाखों मुसलमानों के चेहरे पर दाढ़ी है अल्लाह की रहमत से, पूरी दाढ़ी। मुराद यहाँ इतनी जो छोटी रखते हैं ये दाढ़ी दुरुस्त नहीं है, तो गुनाह है। दाढ़ी मुंडाना भी हराम, एक मुट्ठी से घटाना भी हराम, इससे तो तौबा करनी चाहिए। आशिकान रसूल को इश्क रसूल का दावा भी, और सरकार का आशिक भी क्या दाढ़ी मुंडाता है, सरकार का आशिक भी क्या दाढ़ी घटाता है। क्यों इश्क का चेहरे से इजहार नहीं होता। तो एक मुट्ठी से घटाना ये हराम, नीचे से, इधर से नहीं है, नीचे से जो बाल लटक रहे इसमें बढ़ गए, इसको काट दें। हमारे यहाँ ये अब पता नहीं, ये भी किसी फिल्म एक्टर से सीखा या क्या है, क्योंकि पहले दाढ़ी मुंडाते थे, छुट्टी कम रखते थे, अब दाढ़ी मुंडाने वाले कम हो गए, शेव करने वाले कम हो गए, अब छुट्टी रखने वाले बढ़ गए। अब अगला क्या प्रोग्राम है इनका पता नहीं है। अपना तो एक ही प्रोग्राम है कि जब से आई है अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा ज़हन तो पहले से ही था, जब से आई है मैंने रख ली है। हाँ, जब तक एक मुट्ठी नहीं हुई मैंने काटा नहीं इसको नीचे से, ठीक है ना। एक मुट्ठी से कसदन कभी इसको घटाया नहीं मैंने, और ये फाइनल डिसीजन है इंशाअल्लाह। अल्लाह मेरी लाज रखे, मैं कब्र में साथ ले जाऊंगा इंशाअल्लाह। लहद में इश्क के रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। लहद माने कब्र, रुख माने चेहरा, इश्क रुखे शह, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक के इश्क का दाग मैं कब्र में लेकर गया, क्योंकि सुन रखा था कि बड़ा अंधेरा होता है कब्र में, तो इसलिए मैंने साथ चराग ले लिया है। अब मैं इसकी वो अपने तौर पर ये एक तावील बनाता हूँ कि ये हो सकता है दाढ़ी मुबारक या मुराद हो कि इश्क रसूल के चेहरे, सरकार के चेहरे के इश्क का ये दाग हो, और ये काम दे चराग का और हमारी कब्र में उजाला हो जाए। अल्लाह करे, अल्लाह करे। तो ये चराग सब सजा लो, अंधेरी कब्र में करीब जाना है। बाज बेचारे उम्र रसीदा होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, बड़ी उम्र होती है, वो भी नहीं सजाते, समझाओ तो टेका मार के हंसेंगे, बिल्कुल मतलब पता नहीं क्या है, वो एकदम सख्त हो जाता दिल। वो या तो मुंडेंगे, खाल लटक जाती है, उसको भी शेव बनाते रहेंगे, या फिर इतनी सी रखेंगे छोटी सी, नहीं समझ नहीं होती इतनी। नौजवान अब भी समझ जाता है, ये पता नहीं, ये सब नहीं, लेकिन इस तरह की क्वालिटी के होते हैं जो नहीं मतलब समझते, समझाना आसान नहीं होता इनको, बहुत मुश्किल होता है। तो जो यहाँ मुझे सुन रहे हैं हाजिरीन नाजिरीन, करो ना यार हिम्मत, रमज़ान शरीफ है, वैसे रमज़ान शरीफ में आम दिनों के मुकाबले में दिल कुछ नरम हो जाता है, फ़ायदा उठाएं। और आका की ये सुन्नत सज्जाद नहीं है। अल्लाह रोजी रोजगार का मालिक है, थोड़ी दाढ़ी रखेंगे तो आप भूखे मर जाएंगे, दाढ़ी रखे भूखा मरे ऐसा हो माज़अल्लाह, तो ये हम लोग सब भूखे ही मर रहे होते। हजारों लाखों दुनिया में दाढ़ी वाले हैं, क्या वो नहीं खाते? क्या उनकी शादियां नहीं होती? क्या उनके बाल बच्चे नहीं होते? सब होता है। थोड़ी बहुत बातों का दुश्वारी आती है खानदान में, सबको आती है, और दाढ़ी जो नहीं रखते उनको भी आती है दुश्वारियां, तो बातों का जहां लोहे महफूज पे जोड़ा लिखा है वो तो होकर ही रहेगा। हिम्मत कीजिए, और आज ये तौबा भी करनी है, जब तक दाढ़ी मुंडाई एक मुट्ठी से घटाई वो तौबा भी कर ले, और दाढ़ी आज से एक मुट्ठी सजाने का अज़्म मुसम्मम पक्का इरादा कि सर कटे दामन नामे मुस्तफ़ा पर कल नहीं, भले आज कटे मगर अब ना दाढ़ी कटे
न एक मुट्ठी से घटे इंशाअल्लाह माशाअल्लाह। इंशाअल्लाह जिनकी नहीं आई वो भी नियत कर सकते हैं कि जब आएगी तो मैं रख लूंगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रुख पे एक मुश्त दाढ़ी सजाए सभी रुख पे एक मुश्त दाढ़ी सजाए बने आशिक़े मुस्तफ़ा या इलाही बने आशिक़े मुस्तफ़ा या इलाही लिबास अपना सुन्नत से आरास्ता हो इमाम हो सर पर सजा या इलाही अमल का हो जज़्बा अता या इलाही। अल्लाहुम्मा आमीन। तो जिनकी नियत बनती हो, नियत नहीं बनती तो हाथ नहीं उठाना। तो जरा देख लेते हैं कितनों की नियत बनी कि अब से पूरे चेहरे पर इन्हें एक मुट्ठी दाढ़ी सजाएंगे इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, काफी अशकान रसूल का ज़हन बना है इंशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये फैसलाबाद के अंदर भी जो वहाँ पर इस्लामी भाई हैं, इन्होंने भी नीयत की है कि वो भी दाढ़ी रखेंगे। ये जो जंगले के साथ खड़े हैं, इन्होंने नीयत की है कि इंशाअल्लाहुल करीम हम दाढ़ी रखेंगे। ये सामने माशाअल्लाह स्क्रीन पर ये जो खड़े हैं ना जंगले के इस तरफ, इन्होंने नीयत की कि इंशाअल्लाहुल करीम हम दाढ़ी रखेंगे। माशाअल्लाह एक कॉल भी नीयत की है, वो भी हम चला रहे हैं। माशाअल्लाह। मोहम्मद अरसलान अर्ज कर रहा हूँ रावलपिंडी से। अमीर अहले सुन्नत ने दाढ़ी के बारे में अर्ज किया और मैं बचपन से मुझे बस सुनता आता था, कभी नियत नहीं बनी थी। अब मैं इंशाल्लाह तौबा करता हूँ, कभी इसको नहीं छेड़ूंगा। अमीर अहले सुन्नत से अर्ज है कि मेरे लिए दुआ कर दें, दुआए मगफिरत कर दें, मदीने की हाजिरी के और रिज़्क़ की वसअत की दुआ कर दें। जज़ाक माशाअल्लाह। अल्लाह पाक इस्तिकामत नसीब फरमाए इस नियत पर और आपको मदीना दिखाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अमीर अहले सुन्नत दामद बरकातुहुमुल आलिया से अर्ज़ है कि गुज़िश्ता सालों में जो पूरे माह रमज़ान का एतिकाफ़ करता तो 1 माह का मदनी काफ़िला और आखिरी अशरे का एतिकाफ़ करने पर 12 दिन का मदनी काफ़िला शुमार किया जाता था। अब ये नहीं हो रहा है, बराए करम इस पर नज़र सानी फरमाई जाए। इन्हें 10 दिन को 12 दिन में खपा लिया जाए, 2 दिन कम। रमज़ान में भाव बढ़ जाता है नेकियों का। और 1 माह के एतिकाफ को पूरे साल में 1 महीने का, वैसे ज़ाहिर है मदनी काफिला जो करना होता है नेक आमाल में तो है इसका तज़किरा। तो होना तो चाहिए कि चलो जो मदनी काफिले में सफ़र 1 माह नहीं कर सकते, रमज़ान में थोड़ा जोश होता है, दिल नरम पड़ जाते हैं, नेकियों की तरफ रुझान बढ़ जाता है। तो इस बहाने ये एतिकाफ तो कर लेंगे, वरना मदनी काफिले में भी नहीं जाएंगे और एतिकाफ भी नहीं करेंगे। तो ये शौक होगा, नेक अमल एक बढ़ जाएगा। तो कर तो लेना चाहिए कि 12 दिन की जगह 10 दिन के एतिकाफ को ले लिया जाए, आखिरी अशरे का जो एतिकाफ होता है, और बाकी वो पूरे माह का जो एतिकाफ करे, बाकी एतिकाफ करे, इधर उधर सैल सपाटे ना करे, सैर व तफरी ना करे। तो उसको 1 माह के मदनी काफिले के तौर पर ले लिया जाए। मेरी तो मतलब समझ में आ गया, मेरी तायीद है, लेकिन मैं दावत इस्लामी के मजलिस से हमने बाइख्तियार बनाई है, फैसला ये करेंगे ही, इनकी मर्जी होगी। तो वरना मेरी कोई नाराज़ी भी नहीं है। मैं थोड़ी मदनी काफिलों में सफ़र करता हूँ, ये बेचारे रात दिन भाग दौड़ करते होते हैं और दीनी मदनी काफिले खूब चला रहे होते हैं। तो बेशक यानी कि अगर ये चाहें अपने
जिम्मेदारान जो मजलिस है मदनी काफिला की, तो हाजी अमीन हमारे मदनी काफिला, ये इसके इनके पास है सारी दुनिया के मदनी काफिले, तो इनको पूछे बगैर मैं तो फैसला नहीं कर सकता। तो ये अगर चाहेंगे तो इंशाअल्लाह जो चाहे वो फरमा देंगे। मैंने लगाम इनको दे दी मदनी काफिलों की, एतिकाफ को मदनी काफिले के तौर पे कबूल कर लें तो ठीक, तो भी मेरी तायीद, ना करें तब भी मेरी तायीद। मैं तो अपनी मजलिस शूरा के साथ साथ हूँ, ये जिसको कहते ना पीछे पीछे हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मरकजी मजलिस शूरा को अल्लाह सलामत रखे। अब ये रात दिन बेचारे काम करें। ज़रा मैंने अपने दौर में जो किया उसका तो वो अपने तजर्बात थे। अब तो जो नए नए तजर्बात हो रहे, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, ये जिस तरह बेचारे अपने सर खपा रहे हैं और चारों तरफ दुनिया में ये काम कर रहे हैं, तो इनको मान मिलना चाहिए, इनका हक बनता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अभी हाजी अमीन मदनी काफिला मजलिस के जो हैं इनसे मुशावरत हुई थी, वो सुन रहे थे। अब जब ये इरशाद फरमा रहे थे तो इनके साथ पाकिस्तान सतह के भी ज़िम्मेदारान थे, तो इन्होंने आपस में मशवरा किया है और इनका जज्बात ये हैं कि लब्बैक लब्बैक लब्बैक, जैसा मेरे से फरमाए हमारा मशवरा हो चुका है, इसी को नाफिज करने के ताल्लुक से जो साहब इरशाद फरमा रहे हैं। तो अब ये क्या, इस बार भी अभी 2-4 दिन 6 दिन हो गए, अगर किसी को आना हो तो भले आ जाएं। एक माह के दीनी एक आध दिन में आ जाएंगे ना, तो इंशाल्लाह आपका ये साल भर का जो 1 महीने का काफिला होता है मदनी काफिला, वो काउंट हो जाएगा। रमज़ान के शुरू के दिन है, ये भी अगर ये इजाज़त दे दें मदनी काफिले वाले, तो इस बार बेचारे आ जाएंगे। बहुत सारे इधर उधर से अल्लाह करे कि आ जाएं, मस्जिद में गुजारे, नहीं इधर उधर ख्वारी होती है चारों तरफ बाजारों में, माहौल बहुत ख़राब है। तो इस बहाने अल्लाह के घर में इनके वक्त पास होंगे और नेकियां इबादतें हो सकेंगी। और आखिरी अशरा तो बाकी है, 10 दिन का इत्तिकाफ रमज़ान शरीफ में कर लें तो इंशाअल्लाह 12 दिन का दीनी मदनी काफिला जो है ये आपका इंशाअल्लाह शुमार कर लिया जाएगा। और ये 4-6 दिन की जो मैंने रियायत दे दी बैठे बैठे, तो ये दे तो दी है मैंने, लेकिन अभी ये नाफिज उस वक्त होगी जब हमारी यही मजलिस फिर इसको ओके करेगी कि हाँ भाई इस बार भी बुला लो इनको। अब आइंदा साल किसने देखा है क्या किसकी ज़िंदगी है, क्या है क्या नहीं है, कुछ नहीं। तो अभी आज नकद कल उधार, अभी आ जाओ एतिकाफ में, अगर मजलिस काफिला काउंट करती है तो, वरना नहीं भी करती तो भी आ जाओ। जी बात हुई मेरी, ये साथ हैं शायद, तो ये सुन भी रहे हैं, तो ये लब्बैक जैसा आप इरशाद फरमाएं, मजलिस पीछे पीछे। माशाअल्लाह, नहीं आगे यार, अब तो मैं पीछे नमाज पढ़ता हूँ, पहले आगे होता था इमामत करता था, अब तो पीछे हूँ। तो ठीक है आ जाओ, 8वें रोजे तक आ जाए। ये दूर वाले जो है ना वो इधर आना चाहेंगे तो बेचारों को देर लगेगी, या अपने अपने जहाँ जहाँ एतिकाफ हो रहा है एक माह का मुल्क में या दूसरे मुल्कों में, जगह जगह हो रहा है ना, खाली पाकिस्तान में थोड़ी हो रहा है जी, जहाँ जहाँ हो रहा है तुम वहाँ चले जाए। कराची आना भी जरूरी नहीं है। कराची वालों के लिए 8 तारीख की मैंने जो पंजाब के उनको मोहलत दी है, सिंध वाले 7 तारीख तक आ जाएं, और कराची वाले कल 6ठा रोजा है, कल दिन में किसी वक्त आ जाए या रातों रात आ जाए, यूं कर लेते हैं तकसीम। तो इंशाल्लाह 1 माह का इनका मदनी काफिला काउंट हो जाएगा इंशाल्लाह। हाजी शाहिद चलें भाई, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मरहबा मरहबा। सवाल रमज़ान रमज़ान रमज़ान
रमजान 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 चलो नमाज पढ़े हर इबादत से बरतर इबादत नमाज हर इबादत से बरतर इबादत नमाज सारी दौलत से बढ़कर है दौलत नमाज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो खाने के बाद बर्तन को चाट लेगा वो बर्तन उसके लिए इस्तिगफार करेगा। यारे अमीरे अहले सुन्नत मैंने सुन्नत के मुताबिक खाना खा लिया है, आप मेरे लिए और मेरे घर वालों के लिए दुआएं मग़फ़िरत फरमा दीजिए। मैंने प्लेट साफ कर लिया। सबको रमजान की बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला प्यारे अमीर अहले सुन्नत को बख्श दे, आमीन। नबी जन्नती जन्नती फातिमा और अली जन्नती जन्नती सिद्दीक और उमर जन्नती जन्नती। जब मैं छोटा था मम्मी तब से मेरे पैसे जमा करती है। क्या मेरी मम्मी वो पैसे किसी को उधार की सूरत में दे सकती हैं? माशाअल्लाह, प्यारे प्यारे फूल जैसे बच्चों के अंदाज, उनकी दिलरुबा अदाएं, मरहबा। ये क्या इन्होंने पूछा? उनकी अम्मी जब ये छोटे थे या बहुत छोटे थे उस वक्त से पैसे जमा कर रही हैं, तो क्या वो किसी दूसरे को उधार दे सकती हैं? पैसे इन्हीं के, अब ये इन्होंने गालिबन बोला नहीं है इसमें, इन्हीं के लग रहे हैं, होंगे वरना पूछते नहीं ना जी। हाँ, अगर ये पैसे आपके हैं तो आपको भी देखा तो अभी तक आप बच्चे ही हैं, नाबालिग लग रहे हैं, तो ऐसी सूरत में अम्मी किसी को उधार नहीं दे सकती है ना, उधार नहीं दे सकती, ना उधार भी नहीं दे सकती और खैरात भी नहीं कर सकती, ना आपकी इजाजत से आप भी नहीं कर सकते। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाह रब्बिस समावातिस सब'i व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। 3 मरतबा जिसने पढ़ा तो उसने गोया शब कद्र हासिल कर ली। आइए मिलके पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाह रब्बिस समावाति as-sab'i व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाह रब्बिस समावाति as-sab'i व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाह रब्बिस समावाति as-sab'i व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। প্রিয় মুর্শিদ, বাংলাদেশের যে প্রশ্ন ছিল, আরিফ ভাই প্রবাস থেকে প্রশ্ন করেছিলেন, যদি সন্তান হাফিজ হয় আর মা বাবা যদি নামাজ না পড়ে তারপরেও কি নূরের তাজ পরানো হবে? अगर औलाद हाफिज हो और वालिदैन नमाज ना पढ़ते हो क्या फिर भी नूर का ताज पहना जाएगा? देखो, ये तकसीम हम नहीं कर सकते। बाप बाप
गुनाहगार होंगे या नेकूकार होंगे इसका तस्करा नहीं है, बस वो हाफिज कुरान बना, कुरान पर अमल किया, इस तरह का है ना हदीस पाक के अल्फाज। 10 वो तो उसके लिए है जो 10 की बात करेगा। इसमें यह है कि जिस बच्चे ने हिफ्ज़ किया तो उसके वालिदैन को क़यामत के दिन ऐसा ताज पहनाया जाएगा जिसकी रोशनी सूरज की रोशनी से ज़्यादा होगी। और मुझे जो याद पड़ रहा है हदीस में यहाँ तक अल्फाज हैं कि वालिदैन ये अर्ज़ करेंगे मौला हमने तो कोई ऐसा अमल ना किया था जिसके सबब से हमें ये इज़्ज़त अता की गई है, तो ये इरशाद होगा कि तुमने अपने बच्चे को कुरान पढ़ाया था। तो अब ये माँ बाप ने हिफ्ज़ करवाया, अब इस पे अल्लाह बेहतर जाने इसकी शरह क्या है, शरह तो पढ़ी नहीं है मैंने, अपनी अटकल से नहीं शरह कर सकते कि साहब बेनमाजी के लिए ताज नहीं है, तो फलां जो लिखा उलमा ने तो उसको हमें फॉलो करना चाहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे मेरे सुन्नत ये इरशाद फरमाइए कि दुनिया की सबसे पहली मस्जिद कौन सी है? मस्जिद हराम। मस्जिद हराम वो तो मदीना शरीफ यानी कि इस्लाम की पहली मस्जिद सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, यानी इस्लाम की पहली मस्जिद मस्जिद कुबा है। मस्जिद कुबा। और वैसे सबसे पहली मस्जिद हदीस पाक में पूछा गया तो वो मस्जिद हराम और उसके फिर बाद मस्जिद अक्सा। मस्जिद अक्सा। शेखैन से कौन साहबा मुराद हैं और कौन को इनको शेखैन का लक़ब क्यों मिला, इससे क्या मुराद है? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत उमर फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह अन्हुमा इनको शेखैन कहते हैं। अब वो लक़ब क्यों मिला? इनकी बुज़ुर्ग की वजह से, इनके मर्तबे की वजह से, चूँकि ये सबसे आगे आगे थे और सबसे पहले ये जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं शैख़ुल इस्लाम करके, ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इन दोनों के लिए इस्तेमाल फरमाएँ कि वो हिदायत के इमाम थे, इस्लाम के शेख यानी बुज़ुर्गों में से, बड़ों में से थे। तो चूँकि इनकी इस्लाम की तरफ सबक़त, नेकियों की तरफ सबक़त यानी आगे बढ़ना, ये सबसे आगे आगे थे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो बहुत सारी बशारतें इस हवाले से दी हैं मुख्तलिफ़ मौके पर। यानी ख़ुद हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कई मरतबा फरमाते हुए सुना कि मैं आया, अबू बकर आए, उमर आए, मैं गया, अबू बकर गए, उमर गए, मैंने ये किया, अबू बकर ने यूँ किया, उमर ने यूँ किया। तो ख़ुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन दोनों को अपने साथ मिला कर अपने काम फरमाते थे। बल्कि एक दफ़ा तो एक चरवाहा जो है वो अपनी बकरियाँ चरा रहा था, तो भेड़िए ने उसकी बकरी को पकड़ लिया, तो उसने छुड़ा लिया भाग कर। तो भेड़िए ने फिर कहा कि आज तो छुड़ा लिया, लेकिन उस दिन इसका रहनुमा, उस दिन कौन छुड़ाने वाला होगा कि जब इसके ऊपर सिर्फ मैं ही होऊंगा। उसने हैरत से कहा कि ये भेड़िया जो है वो इंसानी ज़बान में गुफ्तगू कर रहा है, कितनी अजीब बात है। तो उसने कहा कि इस पहाड़ के पीछे एक नबी अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर हुआ है, तुम उनकी तरफ जाके हिदायत को कबूल नहीं कर रही है, इससे बढ़कर अजीब बात है। तो वो वहाँ गया चरवाहा और उसने भेड़िए से कहा कि मैं चला जाऊँगा तो मेरी बकरियों की हिफाजत कौन करेगा। तो उस भेड़िए ने कहा कि मैं हिफाजत करूँगा। तो वो चरवाहा उसको छोड़ के, बकरियाँ चराने वाला बकरियों को छोड़ के भेड़िए के ऊपर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर किया और सारा वाक़या बताया। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इस पर ईमान लाया, अबू बकर ईमान लाए और उमर ईमान लेकर आए। हालांकि वो दोनों हजरात मौजूद भी नहीं थे, उनके बग़ैर बोले, उनके ईमान की क़ुव्वत की वजह से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको शामिल फरमाया। तो इस वजह से इन दोनों हजरात को सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान में शेखैन कहा जाता है। बाकी इसके अलावा फिर बुखारी मुस्लिम, इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम को भी शेखैन कहते हैं, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा और इमाम अबू यूसुफ, इन दोनों को मिलाकर भी शेखैन। शेखैन का मतलब दो शेख, दो बुज़ुर्ग। सल्लु अलल हबीब সাল্লাম। আরেকজন প্রশ্ন করেছেন, বললেন আমি কলেজ স্টুডেন্ট, সঠিক জ্ঞান অর্জনের জন্য কোন কিতাব পড়লে ভালো হবে? उसने SMS किया, मैं कॉलेज का स्टूडेंट हूँ, सही इल्म के लिए कौन सी किताब मुफीद है? शरई उलूम के लिए, सही इल्म, सही इल्म के लिए बहुत सारी किताबें, दीनी इल्म के लिए ना अल्हम्दुलिल्लाह मकतबतुल मदीना पर आपको सैकड़ों हज़ारों किताबें मिल सकती है। मकतबतुल मदीना की किताबें पढ़ें आप। अल मदीनतुल इल्मिया ने जो किताबें तैयार की हैं बहुत काम की किताबें हैं।
तफसीर सिराजुल जिनान पढ़े, कुरान की तफसीर पढ़नी है तो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Dear Amir al-Sunnat, the first question that we have for today is from South Africa. Saad Madaniya from Sufi Nagar, Durban, South Africa is asking, if a child is very naughty, what is the best way to discipline him? सवाल यह है कि अगर एक छोटा बच्चा बहुत शरारती हो तो उसे नज़्म ज़ब्त का पाबंद करने का तरीका क्या होगा? चीखम चाख आजकल तो इसी तरह करते हैं, चीखे मारते बच्चा शुरू में सहम जाता है थोड़ा, फिर आदी हो जाता है। बाज़ बच्चे बस वो होते हैं शरारती, तो जितना कि माओ को तजुर्बा होता है इतना बाप को तजुर्बा नहीं होता, संभाल देगा। अब मुझे तो मुझे क्या तजुर्बा, तो ये कि शफकत की जाए ज़रूरतन, आँख भी दिखाई जाए, डांट डपट भी ज़रूरतन। बार बार डांट डपट करेंगे तो बच्चा ढीठ हो जाएगा, और बहुत ज़्यादा शफकत ही करते रहेंगे तो फिर भी बच्चा हो सकता है सर चढ़ जाए। तो इसलिए मामला ऐसा है कि बीच बीच में हो, मौके की मुनासबत से तो हौसला अफजाई भी की जाए। बाद लोग बात बात पे डांटते होते हैं, ये गलत करते हैं, बच्चा इससे बागी हो सकता है, तो डांट भी ज़रूरत पर, तो प्यार भी, सब मिलजुल कर चले। और तरबियत औलाद, ये मकतबतुल मदीना की किताब है, ज़्यादा सफ़े नहीं है इसके, 100-125 सफ़े होंगे, तो ये ज़रूर पढ़ें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ta'ala ala Muhammad. The next question that we have for today is, can we pray in front of the mirror? सवाल कुछ यूँ है कि क्या आईने के सामने नमाज पढ़ सकते हैं? कोई हरज नहीं है, नमाज हो जाएगी, करात भी नहीं है, लेकिन ये कि इसमें यह सूरत है कि ध्यान बट सकता है। अब अगर ध्यान बटता है तो ज़रा खुशू और खुशू नहीं आएगा, नज़र पड़ती रहेगी तो। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। The next question is, if a person joins Taraweeh from the third rakat, so will he read witr with the imam or will he complete with his Taraweeh first? सवाल कुछ यूँ है कि अगर कोई तरावी की तीसरी रकत में जमात में शामिल हो तो आखिर में वितर इमाम के साथ पढ़ेगा या पहले तरावी मुकम्मल कर लेगा अपने? फ़र्ज में अच्छा, तीसरी तरावी, दो रकात होंगे, वो तीसरी तरावी पहले पूरी कर ली तो ठीक है। अगर वैसे पहले वितर पढ़ लिए तो हरज नहीं है, फ़र्ज़ों से पहले तरावी नहीं पढ़ी जा सकती, लेकिन सही तरीका ये है ना, पहले तरावी मुकम्मल करे फिर वितर पढ़े। SMS के ज़रिए एक सवाल है, ख़त्म नबूवत के ताल्लुक़ से एक मुसलमान का क्या अकीदा होना चाहिए? सैयदना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी माने, और ये यकीन रखे, ईमान रखे कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नया नबी पैदा नहीं होगा, नहीं आएगा, नया नबी नहीं आएगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएंगे तो ये नए नहीं है, तो पहले के नबी है, और अभी ज़ाहिरी तौर पर इनको वफ़ात पेश नहीं आई, तो नया नबी नहीं आएगा, ये ज़रूरी है, ये ज़रूरियात दीन में से। इसका इनकार करेगा तो काफिर हो जाएगा। सोशल मीडिया के नाजरीन में से एक का सवाल है कि क्या आंखें बंद करके नमाज पढ़ सकते हैं? मकरूह तंज़ीही है, और अगर आंखें बंद करने की वजह से खुशू आता है ज़्यादा तो फिर मकरूह नहीं है। एक और सवाल है बांग्लादेश से कि सुना है बारिश के वक्त दुआ कबूल होती है, तो क्या इसमें बारिश में भीग कर दुआ करनी होगी? ये बरसते बारिश में दुआ कबूल होती है, अब तो ज़ाहिर है इसमें ये नहीं लिखा कि बारिश में नहाए तो फिर दुआ करे। तो घर में, जैसे घर में आदमी है, बारिश हो रही है, दुआ करे,
انشاءاللہ قبول ہے. چلو آپ نہا لوگ, ہم جیسا بوڑھا آدمی کیسے نہائے گا بھی, خواتین کیسے جا کر روڈ پہ نہائیں گی؟ حضور یہ کنفیوژن ہے واٹس ایپ پر یا کسی طرح میسیجز میں سلام لکھا ہوا آتا ہے, کوئی لکھ کر سلام بھیج دیتا ہے, کوئی وائس کے ذریعے سلام بھیج دیتا ہے. تو یہی مطلب جیسے لوگوں کے جو فیس بک کے پیجز ہوتے ہیں اس طرح اس پر بھی کوئی سلام لکھ کر بھیج رہے ہوتے ہیں. تو اب جس کو سلام بھیجا گیا ہے اس سلام کا جواب کے دینے کے کیا کیا انداز ہوں گے؟ یعنی اگر اس نے کسی کا میسیج پڑھا ہے اس پہ سلام لکھا ہوا ہے تو یہ خود ہی کہہ دے وعلیکم السلام, یا اس کو لکھ کر بھیجے یا اس کو وائس کی جگہ وائس بھیجے, تو کیا ہونا چاہیے؟ وائس کے بارے میں تو بہرحال اس میں ابھی توقف ہے کہ وائس آئی تو اب وہ ریکارڈڈ کے حکم میں ہے یا لائیو کے حکم میں. بظاہر تو وہ ریکارڈڈ کے طور پر ہی ہوتی ہے. لکھ کر اگر بھیجا ہے اور جیسے لکھتے ہیں السلام علیکم, جو لکھنے کا طریقہ کار ہے اس کے مطابق, تو یہ چونکہ لکھے ہوئے کے حکم میں تو وہی خط والا حکم ہے کہ چاہے تو زبان سے کہہ دے اسی وقت کہہ دے, کیونکہ عام طور پہ جواب دینے میں تاخیر ہو جاتی ہے. لکھ کر بھی دینے کی اجازت ہے اور زبانی کہنے کی بھی اجازت ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا طریقہ کار یہی تھا کہ جب لکھا ہوا سلام آتا تھا تو اسے جیسے ہی پڑھتے تھے فوراً زبان سے وعلیکم السلام کہہ دیا کرتے تھے, پھر اس کے بعد اس کو جواب لکھا کرتے تھے. تو زبان سے بھی کہہ دیا تو اس صورت میں جواب ہو جائے گا, لیکن ظاہر ہے کہ آپ اس کو نہیں بھیجیں گے تو پھر تشویش کا بھی ایک اندیشہ ہے اس کے اندر. سوشل میڈیا کے ناظرین میں سے ایک کا سوال ہے کہ کیا قریشی کو سید کہہ سکتے ہیں؟ ہر قریشی سید نہیں ہوتا. اور وہ اصل میں قریشی, وہ قریش قبیلہ ایک ہمارا جنہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا وہ الگ ہے, اور اب کے جو قریشی ہیں واللہ اعلم یہ اسی قریش میں سے آتے ہیں. تو کئی ایک نے یہ بتایا کہ یہ وہ قریش نہیں ہیں جو اب یہاں قریشی کہلاتے ہیں. گوشت فروش جو ہے نا جی, یہ بھی قریشی کہلاتے ہیں. اور ان میں یہ اپنے اسلامی بھائی بھی ہیں, ان سے یہ معلومات ہوئی تھی کہ اس میں نام بھی لیا تھا کہ صحابی کا میں بھول گیا ہوں کہ ہر گوشت فروش ہوئی ضروری نہیں, بولا ہم لوگ جو ہے نا یہ ان کی اولاد میں سے صحابی کی, قریشی تھے وہ صحابی. ایک اور سوال ہے سوشل میڈیا کے ذریعے کہ کیا بے روزگار شخص کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ روزگار بے روزگار کا مسئلہ نہیں ہے, حقدار ہو. اب روزگار ہے اس کا اور اس کو بیچارے کو پورا ہی نہیں ہوتا, ایک بات ہے, یا پورا ہو جاتا ہے لیکن پھر بھی وہ مطلب یعنی کہ ایسی ضرورتیں اس کی ہیں کہ جس سے وہ زکوٰۃ کا حقدار ٹھہرتا ہے, دی جائے گی زکوٰۃ. اور بے روزگار ہے لیکن بہت سارا خزانہ جمع کیا ہوا اس نے, حقدار نہیں ہے تو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی. یہ ارشاد فرمائیے کہ تعزیت کتنے دنوں تک ہونی چاہیے, اور کیا یہ نابالغ کی بھی کوئی تعزیت وغیرہ کے تعلق سے کچھ رہنمائی فرمائیں گے آپ؟ تعزیت کرنا سنت ہے اور بہتر تو یہی ہے کہ 3 دن میں تعزیت کر لے. اور جو باہر سے آیا ہے دور یا بعد میں ملاقات ہوئی ہے دیر سے, تو اب وہ جب ملا تب تعزیت کر لے. بہتر یہی کہ ایک بار تعزیت کرے, بار بار تعزیت نہ کرے. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں ایک عرض آئی ہے کہ میری ابھی داڑھی نہیں آئی اور میں بھی نیت کرتا ہوں کہ پوری داڑھی رکھوں گا اور کبھی نہیں کٹواؤں گا. دعا فرماتے میں باعمل حافظ قرآن مخلص مبلغ دعوت اسلامی مفتی اسلام بنوں. اور کیا اس طرح کی نیت کرنے سے کیا بچوں کو بھی ثواب ملے گا؟ کہ سوال کسی بچے نے غالباً کیا ہے. بچہ ہوگا یا بعض بالغ ہوتے ہیں لیکن داڑھی تو آتی ہے نا. نیت اچھی نیت کا حل ہے, وہ نیت کو سمجھتا ہے. بچے کی جو نابالغ اس کی بھی نیکی تو قبول ہے نا, اور اچھی نیت کرنا یہ نیکی ہے, تو یوں اس کو بھی انشاءاللہ ثواب ملے گا. صلو علی الحبیب.
صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وحاج احمد طارق گجرات سے عرض گزار ہوں. پیارے مرشدی کی بارگاہ میں عرض ہے کہ باریک بینی سے مطالعہ، اس سے کیا مراد ہے اور اس کے کیا فوائد ہیں؟ برائے مدینہ جواب ارشاد فرما دیجیے. میری اور میرے والدین کی بلا حساب و کتاب مغفرت اور حاضری مدینہ کی دعا فرما دیجیے. یغفر اللہ لنا ولکم. آپ کو بھی مدینہ دکھائے، مجھے بھی مدینہ دکھائے. یہ اپنے باریک بینی کا اس الفاظ کے ساتھ دوسری بار سوال آیا. کوئی کچھ سوشل میڈیا پہ چلی کیا باریک بینی؟ آیا دوسری بار ہے میرے خیال میں اس لفظ کے ساتھ باریک بین. حالانکہ اتنا عوام بولتے نہیں لفظ باریک بین. توجہ کے ساتھ باریک بینی، بالکل گہرائی میں جا کر اسٹڈی کرنا، اس کے معنی مفاہیم اس کو سمجھنا، سوچ سمجھ کر غور کر کے تفکر کر کے مطالعہ کرنا. دینی کتابوں کا تو اسی طرح کرنا چاہیے مطالعہ، تاکہ جو لکھا ہے سمجھ میں آئے، مسئلہ سمجھ میں آئے. سسری طور پر جلدی جلدی پڑھ لیتے ہیں تو ظاہر ہے وہ سمجھ میں اتنا آتا نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد انجم اطاری لاہور سے. پیارے باپا جان، کیا جنات نماز پڑھتے ہیں؟ اگر پڑھتے ہیں اور کس جگہ پڑھتے ہیں؟ جی ہاں، مسلمان جنات میں نمازی جنات بھی ہوتے ہیں اور وہ گھاس پہ نماز پڑھتے ہیں. حدیث پاک میں تم لوگ گھاس پر قضائے حاجت، یہ پیشاب وغیرہ نہ کرو، اس لیے کہ یہ جنات کے نماز پڑھنے کی جگہ ہے. حوالہ لقت المرجان فی احکام الجان، صفحہ نمبر 102. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. گھروں میں جو جیسے کہ باغ ہوتے ہیں جن کے بارہ دری ہوتی ہے، گھاس لگاتے ہیں، ڈر نہ جائیں گے، اور نمازی جن ستائے گا نہیں انشاءاللہ. بعض روایتوں میں صحرا وغیرہ جو کھلے میدان وغیرہ ہوتے ہیں اس میں بھی پڑھنے کا ذکر ہے کہ مسلمان جن ان میں نماز ادا کرتے ہیں. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس سے ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. آئیے مل کے دعا کرتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. ناظرین سے کیے گئے سوالات اور ان کے جوابات. سوال نمبر 1، کھانے کے شروع اور آخر میں نمک کھانے سے کتنی بیماریاں دور ہوتی ہیں؟ جواب 70 بیماریاں. سوال نمبر 2، کیا شک سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب نہیں. سوال نمبر 3، الٹے ہاتھ سے لینا دینا کس کا طریقہ ہے؟ جواب شیطان کا. درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: بنت یوسف، ملیر، کھوکھرا پار، کراچی.
वसीम अहमद एबटाबाद, बिनते खालिद गोजरा, बिनते महबूब आलम वादी सून खुशाब, बिनते मोहम्मद नवाज शेख खैरपुर मीरस, उम्मे गुफरान अत्तारिया कराची, अदनान अत्तारी चीचा वतनी। तमाम दुरुस्त जवाब देने वालों में से कुरानदाजी यानी ड्रॉ के ज़रिए निकलने वाला नाम वसीम अहमद एबटाबाद, इनको तोहफे में 12 माह की माहनामा फैज़ान मदीना की बुकिंग दी जाएगी। ये अपना नाम या जिसका भी नाम पेश करेंगे उनको 12 महीने तक घर पर रंगीन माहनामा फैज़ान मदीना पहुंचाया जाएगा। नाजरीन से मज़ीद सवालात। इस्लामी बहनें महरम का नाम और नंबर लिखें। इस्लामी बहनें अपना नाम लिखने की बजाय कुनियत लिखे यानी उम्मे फुलां या बिनते फुलां। जवाबात कल इशा तक देने हैं। सवाल नंबर 1, दुनिया में किसी के 3 पैसे कर्ज दबा लेने वाले को क़यामत के दिन इसके बदले कितनी बार जमाअत नमाजें देनी पड़ेंगी? सवाल नंबर 2, दुनिया की सबसे पहली मस्जिद कौन सी है? और सवाल नंबर 3, किन 2 सहाबा किराम अलैहिमुर रिदवान को शैखैन कहा जाता है? सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह, अमीर सुन्नत की तरगीब पर इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें जो है वो कुरान पाक 3, 2 और 1 पढ़ने की नीयतें हमें भेज रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, जो मजलिस के तहत अब तक जो कारकर्दगी हमें मिली है वो इसके मुताबिक 3 कुरान पाक पढ़ने वालों की नीयतें इस्लामी भाई 35,565, इस्लामी बहनों की तादाद 17,235, 2 कुरान पाक पढ़ने की तिलावत की नीयतें करने वाले 19,595 इस्लामी भाई और 26,712 इस्लामी बहनें। 1 कुरान पाक की तिलावत की जो नीयतें 49,364 इस्लामी भाई और 60,565 इस्लामी बहनों की तादाद। टोटल इस्लामी भाइयों की तादाद हमें मिली है 1,04,524 और इस्लामी बहनों की तादाद मिली 1,04,532। टोटल इस्लामी भाई और इस्लामी बहनों की तादाद 2,09,056। अल्हम्दुलिल्लाह, ये कारकर्दगी है। अल्लाह पाक सबकी कोशिशें कबूल फरमाए और दुनिया और आखिरत की बरकतें नसीब। मदनी मुज़ाकिरा, मदनी मुज़ाकिरा, मदनी मुज़ाकिरा, मदनी मुज़ाकिरा।